The topic of jinns and black magic, obviously it stirs up a lot of curiosity, a lot of people have a lot of questions about this subject. And so inshallah, we're going to get into this straight away. I think we have time to speak till 9 o'clock, 8:30, and then half an hour, 10 minutes. Okay, that's fine. So basically we'll start off with the word of the unseen. So I'm going to get straight into it. Now guys, the thing is कि जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं, इसी दुनिया के अंदर कुछ और भी अल्लाह की मखलूक है जो इसी दुनिया को हमारे साथ शेयर करती है. One of those creatures are known as angels, and they are those who have different functions. Allah subhanahu wa ta'ala ने उनको different roles दिए हैं. For example, when the child is in the womb of the mother, they blow the soul into the body. Likewise, जब इंसान की डेथ होती है तो कुछ angels हैं जो कि मलकुल मौत कहा जाता है. They pull the soul out of the body. There are certain angels that bring the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala to your houses, and likewise there are those who are carrying the throne of Allah subhanahu wa ta'ala, those who will drag hellfire on the day of judgment, and those who would bring down revelation. So that's angels, they're made of light. So ये Allah की मखलूक है. Allah ta'ala फरमाते हैं allazina yu'minuna bil ghayb, that the believers are those who believe in the unseen. So this is part of the unseen. Now also part of that unseen is the world of the jinn. And Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran, He does not mince His words. He is explicitly clear when He says in Surah Az-Zariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, that I have not created the jinn or mankind for any reason except that they would yani worship Allah subhanahu wa ta'ala, or yani Allah के बंदे बन जाएं. إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, Allah के बंदे बन जाएं. असल में बात ये कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो बनना चाहते हैं जरूर बने, but first and foremost आप अल्लाह के बंदे बन जाएं. Likewise, Allah subhanahu wa ta'ala says very explicitly again in the Quran, خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ. So again very clear कि Allah Ta'ala ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया और जिनों को एक smokeless fire से पैदा किया. So they are made of fire, we are made of the dust, and the angels are made of light. So this is the world of the unseen. Now, having said that, there are hadiths of the Prophet sallallahu alaihi wasallam where he said that whenever a rooster makes that cock-a-doodle-doo sound, that's when a rooster has seen something. And what is that? It's actually seen an angel. So आपने कहा कि जब भी rooster की आवाज सुनो तो उस टाइम पे तुम कहा करो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, oh Allah, I ask you for your blessings. And I've seen this in my house. My mom is really big on keeping like roosters, hens, ducks and so on. तो हमारे घर में फजर से भी पहले, यानी लोग होते हैं ना, वो कार्टून्स में दिखाते हैं कि जब सूरज निकलता है तो मुर्गा बोलता है. Actually, contrary to that, फजर से भी 5-10 मिनट पहले मुर्गा शुरू हो जाता है. And this happens every day in my house, every single day, because this is the time when the angels descend. According to the hadith of the Prophet, एक टाइम फजर के टाइम पे angels आते हैं, फिर उनकी शिफ्ट बदलती है, असर के टाइम पे they go back up, and then असर के टाइम पे जो angels आते हैं वो फजर के टाइम पे वापस जाते हैं. And the rooster, I've observed him over many years now. That's exactly when he starts going crazy. And so इसी तरह से आपने फरमाया कि जब गधे की आवाज तुम सुनते हो तो that's when it has seen a devil. So उस टाइम पे आपको पढ़ना चाहिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. So maybe I don't know you guys, I don't know आप में से बायो साइंस में या उसमें कौन है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, maybe in the future if we can get like a bionic implant of the eyes, एक रूस्टर की एक गधे की, so you'll be able to see the world of the unseen. Right? आपको जिन्न और नजर आएंगे. But the thing is that that feeling would be very scary for you, because अल्लाह का बड़ा करम है कि हमें ना तो एंजल्स नजर आते हैं और ना हमें जिन्न नजर आते हैं. And there are many ahadiths where, for example, the Prophet said, when a person dies and they go into the grave, he said कि जो righteous soul होता है उसके लिए तो वो grave जो है वो जन्नत के gardens में से garden बन जाती है. So for a righteous person, the grave actually becomes something better than this world. It's not like कि हम कब्र में जाएंगे मर जाएंगे तबाह हो जाएंगे. This is for a righteous person. It's like a garden of paradise, and the person goes to sleep very peacefully. But for a person who was rebellious, उसको जब फरिश्ते दो उतरते हैं कब्र के अंदर तो वो उसके गर्दन पे हैमर मारते हैं, जोर से एक हथौड़ा मारते हैं, जिसकी वजह से वो बंदा चीखता है. And the Prophet ﷺ said कि all the creation of Allah subhanahu wa ta'ala can hear that scream जो उस vicinity में होते हैं, except jinn and mankind. You are not able to hear that. So we don't know what decibels it's coming at, but he said कि if you did hear it, you would die. अगर आप वो चीख सुन लेते जो कब्र से आवाज आती है तो आप मर जाते. And the strange thing is कि now dogs and cats and crows जो कब्रिस्तानों में फिर होते हैं, can you imagine they can hear all of this, and yet so many secrets they're hiding in themselves. अब देखो अल्लाह ताला ने अपनी डिफरेंट मखलूक को ना डिफरेंट क्वालिटीज दी हैं. Dogs have an excellent sense of hearing, an excellent sense of smell. Likewise, cats के बारे में आप देखो, जहाँ से भी आप उनको फेंकते हो, they somehow flip over. So you have different eagles को आप देखो कहाँ से बुलंदी से they can see, a meal. So all of these things are there,
And so part of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala are those creatures which are unseen to us. And Allah subhanahu wa ta'ala ने बहुत explicitly कुरान मजीद में angels का भी जिक्र किया हुआ है और जिन्नात का भी जिक्र किया हुआ है. The question that we'll focus on today is how much do they interfere with our life? How much do they interfere with the life of human beings? So inshallah, that's the premise. Now one of the uncles in Islamabad who I was talking to, तो वो थोड़े से skeptic थे. तो उन्होंने कहा कि बेटा एक मुझे सवाल का जवाब दें. मैं जी अंकल बताएं. कहते बेटा ये बताएं कि सारे के सारे जिन पाकिस्तान में क्यों होते हैं? कहते बेटा मैंने तो कभी नहीं सुना कि लंदन में न्यूयॉर्क में कोई जिन आया हो या किसी को मैंने अंकल आपकी बात बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं. बिकॉज द पॉइंट इज के वहां पे उनको जिन नहीं कहते, वहां पे दे आर नोन एज अदर नेम्स. So for example, you know, this is University of Virginia, Department of Paranormal Sciences. That's what they call it. They call it the Paranormal Sciences. पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है. जिस तरह यहाँ लम्स में डिपार्टमेंट्स हैं, you've got Department of Paranormal Sciences. आपको पता है आईवी लीग यूनिवर्सिटीज के अंदर रिसर्च पेपर्स हो चुके हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी के ऊपर. Something that they call metaphysics. एक फिजिक्स है, एक मेटाफिजिक्स है. एक नॉर्मल है, एक पैरानॉर्मल है. एक फिजिकल है, एक मेटाफिजिकल है, देन देयर इज साइकोलॉजिकल एंड पैरासाइकोलॉजिकल. सो यू गॉट ऑल दीस डिफरेंट टर्म्स जो कि वो यूज करते हैं, बट उनको तो नहीं पता जिन क्या होता है. दे डोंट हैव द कुरान टू गाइड देम थ्रू दैट. अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो बड़े क्लियरली बताते हैं. पूरी सूरत अल-जिन नाज़िल हुई है कुरान मजीद में, सूरह नंबर 72 दैट टॉक्स वेरी क्लियरली अबाउट हु जिन्स आर एंड व्हाट दे डू. But the point is कि वो लोग भी करते हैं, they have these various shows like ghost hunters and so on. वो चले जाते हैं किसी घर में जाके research करते हैं, पता करते हैं, बस डरते रहते हैं. You know, आवाज आई, आहट आई, छुप गए. You never get to see one. But they keep on having these energy readings, जो जाके readings लेते रहते हैं, beep 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 and oh something's there. फिर अंदर जाते हैं, investigate करते हैं. So they can keep doing that stuff. Now the thing is कि what do I want to focus on? देखो ये एक remote control है, right? If this remote control is lying on the table, you say that that's what it's supposed to do, right? Newton's law, a body will continue in its state of rest or uniform motion unless an external force is applied to it. So it will continue in its state of rest unless, if this thing starts to float in the air, अगर ये चीज आपके सामने आंखों के हवा में उड़ना शुरू कर दे, तो you can come up with some scientific explanations that maybe there's a magnetic field that is kind of repelling it, or maybe one attracting it, or maybe there's a, you know, a synthetic fiber कोई है जो कि almost transparent है, we can't see that, or maybe there's a wind turbine, or you can come up with many things. But what if I tell you it's none of those things? What if I tell you there are supernatural phenomena taking place which have no physical explanation whatsoever? ये फिर आता है डिपार्टमेंट ऑफ पैरानॉर्मल साइंसेस कि ये अब साइंस के बियॉन्ड कोई बात हो रही है. सो मैंने आपको ये बताना है कि क्या दुनिया में ऐसे वाकयात हो रहे हैं जो कि साइंस को कुछ नहीं पता ये क्या हो रहा है. क्या ऐसे कोई वाकयात हो रहे हैं जिसके बारे में दे आर एब्सोल्युटली क्लूलेस, एंड व्हेन यू आस्क देम व्हाई दिस हैपेंड दे जस्ट श्रग देयर शोल्डर्स एंड से आई डोंट नो, वी डोंट नो. बहुत सी ऐसी मिस्ट्रीज हैं जिनका अमेरिका में भी, यूरोप में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी लोगों को अभी तक नहीं पता. मेरी एजुकेशन, बाय द वे, फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, आई वाज एजुकेटेड इन द यूके primarily. My bachelor's was from there and my master's was from Australia, University of Canberra. Ji brother. And turn on the mic. Which one? This one? It's not recording? Okay. Okay, done. So basically, having traveled around the world, I know कि वहाँ पे भी कुछ issues हैं जो कि वो identify नहीं कर पाते और उनकी अपनी universities बनी हैं. Coming to Hollywood. Now Hollywood की एक बहुत बड़ी obviously movie industry है. उसके अंदर एक और सब सेक्शन है जिसको हॉरर मूवी जॉनरा कहते हैं. हॉरर मूवी जॉनरा के अंदर 95% ऑफ द मूवीज आप कह रहे हो रफली आर एब्सोल्यूट फेक एंड बोगस. दे गॉट नथिंग टू डू विद रियलिटी. वेयरवुल्व्स, वैम्पायर्स, ट्वाइलाइट, you know, it's got nothing to do with reality, right? So उसमें कोई hobgoblins and witches and ये उसका ताल्लुक कोई reality से नहीं है. But I said 95%. There are 5% movies give or take जो हॉलीवुड प्रोड्यूस करता है जिसके बारे में वो खुद कहते हैं बेस्ड अपॉन अ ट्रू स्टोरी. सो हाउ डू दे शो देम? दे फॉर एग्जांपल द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, ठीक है, एन अमेरिकन हॉन्टिंग, द कॉन्जरिंग, सरप्राइज सरप्राइज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, एमिटीविल हॉरर बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, एंड देयर आर मेनी अदर्स. नाउ इन स्टोरी से वो क्या करते हैं? व्हाट्स द कंक्लूजन टू दिस स्टोरी? सो दे विल शो यू लाइक कोट अनकोट डीमंस possessing someone. Demon वो जिन को बोलते हैं. So for example Christianity के अंदर they don't call them jinns, they call them demons. So I have, by the way, at my house a book इतनी thick. It's called the Book of Demonology, written by not a mufti or allama. It's actually written by a non-Muslim. I have another book about this thick. It's called the Book of Witchcraft, which I got from the UK.
वो भी जो बुक है किसी मुफ्ती ने लिखी है, उन्होंने लिखी है एंड उन्होंने अपने वाकयात लिखे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ सुपरनैचुरल फिनोमेना हैव वी एक्सपीरियंस्ड ओवर द लास्ट आई डोंट नो 500 years to like 1000 years. कौन से ऐसे वाकयात हैं जो हमारे सामने हुए हैं व्हिच वी डोंट नो व्हाई दैट हैपेंड. सो द थिंग इज हॉलीवुड भी आपको फिल्में दिखाता है जिसके एंड में वो आपको सवाल छोड़ देते हैं कि बिग फैट क्वेश्चन मार्क. नॉर्मली अ टिपिकल मूवी एंड्स लाइक दिस कि हीरो दिखाते हैं apparently जीत गया, but then as the movie is about to finish and he says his goodbyes to everyone and he's sitting in his comfortable living room having a cup of coffee, उसके पीछे से एक साया गुजरता है and that's when the credits roll and दिखाते हैं the end. And you're like what? And then they go and they get and you're like what happened? So बात ये कि वो हमेशा मूवी को एंड कर देते हैं कि इसका पार्ट 2 भी आ रहा है. Conjuring 1, Conjuring 2. Right? So पहला part दिखा Nightmare on Elm Street 1, Nightmare on Elm Street 2. So obviously they want to make a sequel. तो इसलिए वो उसको छोड़ देते हैं. Never do they actually end up killing the demon. हमेशा कोई एंड में क्वेश्चन मार्क होता है कि हमारे ज़बान में कहते हैं वल्लाहु आलम, अल्लाह knows best कि क्या हुआ उसके बाद. I'm telling you the shortest horror movie ever would be where for example Tom Cruise या Brad Pitt hero है and जैसे आगे से कोई demon है is like अल्लाह ला इलाहा and they come out at the end. तो पहले को ब्रैड पिट को ऐसे दिखा दे जाके कि वो कभी भी नहीं करते. वो हमेशा अपने द पावर ऑफ क्राइस्ट कंपेल्स यू एंड ब्ला 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 कुछ ना कुछ करते रहते हैं. दे कीप थ्रोइंग होली वाटर एंड अनियंस एंड पता नहीं गार्लिक एंड क्या प्याज टमाटर खिलाते रहते हैं. ऐसे कैसे you can't kill a demon like that. So the thing is that we have something and inshallah I can share with you some personal stories as well of people I've spoken to, I've dealt with inshallah ta'ala. So ये है आपकी horror movie industry. Now coming to the same question जो अंकल पूछते थे, ये आपके सामने खबर है, सॉरी सिन उर्दू, BBC उर्दू की खबर है. बर्तानिया में जादू टोने से बच्चों पर तशद्दुद के वाकयात में इजाफा. कहाँ पे थी? बर्तानिया में. ये पाकिस्तान की बात नहीं हो रही. तो जादू टोने की वजह से जो बच्चों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, मीनिंग के कोई रिचुअल किए जा रहे हैं बच्चों के साथ. दिस इज हैपनिंग इन ब्रिटेन नाउ. ये कोई पाकिस्तान के गांव की खबर नहीं है कि किसी बच्चे पे तशद्दुद हुआ विद सम काइंड ऑफ विचक्राफ्ट और मैजिकल प्रैक्टिस दैट दे वर एक्चुअली एंगेजिंग इन. सो दिस लीड्स यू टू these type of things. Now here's a video. I don't know if I can. Okay. और सिटी थाने में जिन्नात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. 3 से 4 रोज कम बच्चे पानी लाने गया और लापता हो गया. वालिदैन का मौक़िफ़ यह कि हमारे बच्चे को जिन्नात ने कातिल किया और लाश जंगल से मिली थी. अदालत के हुक्म पर बच्चे की कब्रगुशाई और पोस्टमार्टम भी कर लिया गया. और आपको ये खबर देने की DIG दियामिर की सरबराही में मामले की तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई है. अनोखी ये खबर है चल्लास में वाक़या पेश आया है जहाँ बच्चे की पुरस्कार हलाकत हुई और सिटी थाने में जिन्नात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया. Alright, so this news, although it sounds bizarre and very strange and peculiar, कि ऐसा क्यों होगा, बट आपको मैं बताऊं कि जो असल में जो अगर आप कहानी को सुनेंगे कि क्या क्या हुआ कहते हैं, what were the actual facts. ये लड़का जो था ये बच्चों के साथ खेलने के लिए गया चल्लास में और पानी के पास गया एंड वहां से वो गायब हो गया. The boy simply disappeared. And जो बच्चों से पूछा कि जी किधर गया, they had no clue what happened. And a few days later, his body was found elsewhere, mutilated and so on. तो उसके जो पेरेंट्स थे, उन्होंने काफी अरसे से कुछ पैरानॉर्मल बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे थे घर के अंदर, and they were convinced beyond shadow of doubt कि this is the work of the jinns. Now बेचारों की बेबसी है कि वो थाने में चले गए और जिन्नों के खिलाफ FIR कटवा दी. अब जिन्नों के भी नाम होते हैं by the way, तो आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं इंसानियत के ऊपर FIR कटवा रहा हूँ. It's like equal to saying that कि जी किसी बंदे ने कोई जो है ना मसला किया हो, आप जी मैं तमाम इंसानों पे FIR कटवा रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता. You have to mention specifics. And again हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट, I don't think it's equipped to handle जिन cases yet. तो इस वक्त वो अभी नहीं है सीखा. So anyway, ये एक और खबर है. This is from the Mail online and in which it says that we have a guest in our home. Terrifying video shows poltergeist in a kitchen as the ceiling light swings and a bin is heard across the room. Now this is an Irish woman who basically captured something which she calls a ghost. Now, Islamically speaking, there are no such thing as ghosts. ठीक है? जो बदरू है ना वो कुछ नहीं होता because जो लोग फोत हो जाते हैं वो आलम बरज़ख में होते हैं. They are in a state of transit. वो वापस दुनिया में नहीं आ सकते भटकने के लिए और आपको डराने के लिए. उनका मामला अल्लाह के साथ है. ठीक है? So they are in the state of the grave. That's where they are, and they will be resurrected on the day of judgment. So ये जो belief है कि जी ghost कोई मर के वापस आता है, that's not true. अगर ये होता है, अगर कुछ ऐसा होता भी है, कोई लोगों को फीलिंग आती है, it is sometimes the jinns who
do that, and I'll explain later on how they do that actually. So ये जो खातून है इन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया. अब ये जो वीडियो है ये वेरीफाइबल वीडियो है. इट्स एक्चुअली वेरीफाइड. इट्स नॉट डॉक्टर्ड. द वीडियो इज एज ऑथेंटिक एज इट इज. बिल्कुल उन्होंने अपने पेज पे डाला हुआ है. यू कैन गो एंड चेक इट आउट. तो डॉक्टर्ड नहीं है, एज इट इज वीडियो. यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ. यू सी द सीलिंग लाइट स्विंगिंग, देन इट बिगिंस टू स्विंग अ लिटिल मोर, देन यू सी अ फ्यू कबर्ड्स ओपनिंग अप, एंड देन देयर इज अ बिन व्हिच इज अक्रॉस द एंड ऑफ द रूम, जो उसकी तरफ तेजी से आता है without anyone being there. ठीक है, so just have a look at the video and you'll get an idea of why. So ये वाक़यात उसके घर में रेगुलरली हो रहे थे, but then अब चूंकि हमारे पास मोबाइल फोन आ चुके हैं, हम फौरन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो this time she recorded it until the bin came towards her. So inshallah have a look at this and see how it is. Lights on. अच्छा, पीछे अभी एक वो ग्रूम गिरेगा ना, पहले स्विंग, अभी लाइट स्विंग करेंगे, देन देयर विल बी अ ग्रूम इन द बैक दैट विल टिप ओवर. सो दिस इज मूविंग. अभी कुछ अलमारियां खुलेंगी यहाँ साइड में एंड सब बर्तन वगैरह गिरेंगे. Now you'll see a cupboard opening very slowly. जो ऊपर है ना cupboard, ये ड्रॉर खुले, जैसे ड्रॉर इधर ओपन. अब पीछे एक बैक में जो है cupboard खुलेगी. आप देखिए बड़े आराम से. And now the bin. अभी आप देखिए रेड कलर का bin की तरफ आएगा. Alrighty then. वीडियो आपने देखा, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं. मेन ऑनलाइन की वेबसाइट पे जाकर अगर आप सर्च करेंगे आयरिश वुमन टेरिफाइड बाय पोर्टरगाइज, आपको ये मिल जाएगा. अच्छा, सो दिस इज एज फार एज यूरोप इज कंसर्न कि कुछ वाकयात वहां पे भी, देयर आर टन्स ऑफ अदर वाकयात आल्सो जो मैं आपको आगे बताता हूं. ओके, हियर इज अ केस जो कि आप बहुत आराम से रिसर्च कर सकते हैं. दिस इज द केस ऑफ अ गर्ल बाय द नेम ऑफ एनालिस माइकल. एनालिस माइकल वाज अ जर्मन गर्ल. इन 1975 उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म हुआ फॉर अबाउट 1 ईयर, एंड दिस वाज द लास्ट केस ऑफ एक्सोर्सिज्म इन जर्मनी. एंड सो बेसिकली उसके साथ मसला ये था कि her parents believed she had some kind of psychiatric problem, so they showed her to different psychiatrists. Now the thing is that cases of possession, demonic possession, it looks like a psychological issue because the person is acting crazy or very unlike themselves. So हुआ ये कि उन्होंने जब उसके ऊपर psychiatric test कराया तो पता चला कि बिल्कुल normal है, कुछ भी मसला नहीं है. And then, but the problem was still there. She was still acting crazy. So they called some priests and पता चला कि she was possessed by 6 demons according to them. So they were convinced, the parents and the priests were convinced that she was possessed by 6 demons. Unfortunately, 1 year की exorcism के बाद, Anneliese Michael died at the age of 22. And the picture I've put up over here is a very उसकी बचपन की तस्वीर है when she was like 9 or something. But जो उसकी लेटर तस्वीरें हैं वो काफी स्कैरी हैं. So like when she was like 20, 21, 22, she almost became like a skeleton basically. And the reason why the priest and the parents were convinced that she is possessed by 6 demons was because Anneliese Michael, जो कि सिर्फ 5 जमातें पढ़ी हुई थी, कैथोलिक गर्ल थी, when she would be in her fits, she would speak a language which she had never studied, which was Latin. She was fluent in Latin. Now, those of you who have an understanding of schizophrenia or bipolar disorder, अगर आपको bipolar या schizophrenia होता है, आपका brain तो वही रहता है, but आपकी जो interpretation है वो बदल जाती है. So you might have 2 personalities. One is a very timid person, very shy person, जो बड़ा दब जाता है आराम से. एक बहुत aggressive पैदा हो गया. So एक ही बंदे के अंदर due to some childhood trauma or some other post-traumatic stress, किसी वजह से वो बेसिकली स्विच हो गया और उसकी वजह से अब उसकी 2 पर्सनालिटीज बन गई हैं. कभी कभार वो बहुत अग्रेसिवली बिहेव करता है, like super aggressive, which you can't even imagine कि जब नॉर्मल हालात में होते तो इज वेरी वेरी शाय, बिल्कुल बात नहीं करना, बिल्कुल टिमिड. सो जैसे कि कोई चाइल्डहुड में मसला होता है जिसकी वजह से उसने उसको कोप करने के लिए 2 पर्सनालिटीज को डेवलप कर लिया, या समटाइम्स मोर आल्सो, समटाइम्स देयर कुड बी मोर पर्सनालिटीज एज वेल. सो वो फिर मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है. तो लेकिन इस केस में
It's not that she has multiple personalities. The problem is worse than that. Not only is this a different personality altogether, she's speaking a different language, which is impossible if you think about it. जो मैंने आपसे बताया ना कि normal state क्या है कि how on earth did she learn Latin? तो उसके पेरेंट्स भी कंफ्यूज थे कि दूर दूर तक उसके गांव के अंदर लैटिन बोलने वाला नहीं था. ये प्रीस्ट भी मंगवाया कहीं बड़े दूर से, जो कि कुछ थोड़ा बहुत लैटिन जानते थे, and they were surprised कि how fluent she is. And आपको पता है कि पिंडी में, because I'm from Islamabad, पिंडी में there was a guy who came to me and he asked me कि जब भाई my mother she has a problem, and I said what's the problem? He says कि वो बहुत कम पढ़ी हुई है, she's not that educated, but you know whenever she gets angry, she starts screaming at us in Farsi, and we never knew what she was speaking until one of our relatives told us कि तो फारसी बोल रही है, and पता चला कि वो तो I told him कि bro listen, this might come as a shock to you, but your mom's possessed. Nobody wants to hear that. Nobody wants to hear that. So खैर anyway उनको बताया कि क्या ट्रीटमेंट आपने करवाना है, so alhamdulillah. So the thing is, इसमें I don't know if I have audio for this. By the way, ये केस मैंने इसलिए mention किया, एक तो this is last case of exorcism, दूसरा it is very heavily documented. So if you want to research on this, like I did for example, मैं रात के 2-2:30 बजे जब मैं first time ये workshop बना रहा था, I kicked my family out of the house because I didn't want people to freak out कि रात को आवाजें आ रही हैं, because ये जो इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग सारी अवेलेबल है, इसकी कुछ वीडियोस भी अवेलेबल हैं, क्योंकि this is the 70s and they actually had the decency to record some of this. So they've recorded some of the rituals जो हो रहे हैं, उसकी ऑडियोस अवेलेबल है, and you can see clearly how her voice changes from a girl to like a man's voice. And you can see the shift in different personalities, that's all there. So अगर आप में से कोई रिसर्च करना चाहता है, there is tons of material available on Annalise Michael. इसकी आपको मेडिकल रिकॉर्ड्स भी मिल जाएंगे, साइकोलॉजिकल प्रोफाइल भी मिल जाएगी, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स. तो अगर कोई थीसिस भी करना चाहे इसके ऊपर पीएचडी लेवल पे, there is plenty of material available. 2-3 डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं इसके लाइफ पे. And the movie The Exorcism of Emily Rose actually is based upon her story. तो वो मूवी भी जो है उसी की लाइफ पे बनी हुई है. So this is as far as Annalise. I don't know if I have audio for this, but if I do, I'll just put it on. Okay. Okay, basically आप देखिए कि इसमें the priest are reciting something and she's having clearly बहुत अजीब सा reaction उसका आ रहा है, and you can see what she's reciting. She's getting very angry and upset, and उसका voice भी change कर रहा है. जो उसकी voice में एक roughness आपको नजर आ रही है, that's not her normal voice. आप जब full इसके वीडियोस देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि how much her voice actually changed between sessions, like when she would be having these sessions, how much her voice would actually change. So this is just to show you a glimpse of what's not just happening in Pakistan but also abroad. ये जो आपके सामने पिक्चर है, ये मैंने अपनी उसी विचक्राफ्ट वाली बुक से ली है. This is devotees of voodoo who were executed for cannibalism by the French colonial authorities in 1865. So these are practitioners of voodoo magic who were killed by the French in 1865 because of cannibalism. So part of their magic rites was that they would actually devour other human beings. This is again, इसका ताल्लुक अब पाकिस्तान से नहीं है. Here you have two voodoo dolls. One of them, this one is an African one, this is the European one. और आप इसके यहाँ पे देख रहे हैं जो ये चीज है, that's like a तावीज़ basically, जिसमें एक parchment है जिसपे कुछ लिखा हुआ है. That's the cursed spell जो लिखी होती है. And this is apparently the hair of someone जिसपे जादू करना होता है. और इसी तरह से ये एक इन्होंने बना के नीडल्स वगैरह लगाते हैं. आपको पता है I've seen Pakistani voodoo dolls also. Pakistani voodoo, यानी no matter where you are in the world, the तरीका of magic is the same. So it involves certain practices which are common between all of them. So magic में जो है ना ये एक उम्मत बन चुके हैं आपस में. They're all there, no matter what part of the world they're in. तो जो पाकिस्तानी voodoo doll है उसमें क्या होता है? Basically it's the
जो आपको नॉर्मली ये नहीं गुब्बारे वालों के पास जो डॉल होती है सस्ती सी 15 रुपए वाली, उस डॉल के साथ किसी के बाल बांधे होते हैं या कुछ और चीज, उसके अंदर पिन्स लगाएंगे, किसी का नाम लिखा होता है. अभी रिसेंटली जस्ट आई थिंक 3 days ago a sister sent me a picture of a voodoo doll with the pictures of a person जिसके ऊपर जादू किया हुआ था और क्लियरली लिखा हुआ था कि इसकी और उसकी वाइफ के बीच में हम स्प्लिट कराना चाहते हैं. And so all of that material was there, और उनको सारा वो जो है ना मिला, and I asked her to dispose of all of that stuff. So ये practice जो है ये आपको यहाँ पे भी मिल जाती है. Now the way of magic, as I said, it's common no matter which part of the world you're in. Here is a picture of the Middle Ages, England में जब witches को burn किया जाता था at the stake. And so Middle Ages में this was a common practice कि when they would find someone जिसको हम अपनी जुबान में जादूगर नहीं कह सकते हैं, like a witch who is practicing magic, उनको execute किया जाता था because they were known as heretics, people who are leaving the fold of their religion. So a lot of times उसमें हो सकता है बेगुनाह लोग भी मारे जाते हों, but उस जमाने में witch hunting used to be like a profession. So this is Matthew Hopkins, 17th century Europe का famous witch hunter है. यानी कि this is like witch hunting used to be like a department of police. So you have the police and then there is a special unit which is there to find out witches, hunt them down and to bring them so that they can be executed. और ये जो आपको पेंटिंग नजर आ रही है, this is from Germany. So इंग्लैंड में भी हो रहा था, जर्मनी में भी witches को जलाया जा रहा था. तो उनकी पनिशमेंट होती थी, उनको आग लगा देते थे. That's how much they were like, इनसे कितना फसाद फैल रहा है माशरे के अंदर. Okay, so now this is as far as the story goes कि throughout world history ये बातें होती रही और आज भी हो रही हैं. Now let's come to the real issue कि why this is happening and how is magic done. उसके लिए आपको समझना पड़ेगा नेशन ऑफ द जिन्स को. अब्दुल्ला बिन अब्बास जो है रज़ियल्लाहु अन्हुमा, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कज़न है, वो बहुत बड़े मुफस्सिर भी हैं, यानी ही इज अ बिग स्कॉलर ऑफ एक्सेजेसिस, यानी कुरानिक तफसीर के बहुत बड़े स्कॉलर हैं. वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानों से पहले जिन्नों को पैदा किया, एंड दिस इज एविडेंट फ्रॉम द टेक्स्ट एज वेल. तो अल्लाह ताला ने जिन्नों को पहले पैदा किया, एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिन्नों को फ्री विल दिया. And they were the first creation to be given free will, because the angels didn't have free will. So when they were given free will, they had the right to choose whatever they wanted. Allah Ta'ala फरमाते हैं, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. That inside you, you have the capacity for goodness and you have the capacity for evil as well. So you can make your own choice. Imagine before the creation of mankind, an epic battle took place between the jinns, and at that point, Iblis जो था ना, aka Lucifer, he was a righteous jinn. He was a pious jinn. उसने कहा कि मैं इनको रोकने के लिए जाता हूँ. So he came down on earth and he tried to stop the jinns from fighting, but he couldn't stop them. So he requested for backup and he called the angels to come down, क्योंकि उसके बस की बात नहीं थी. He could not stop them. So the angels came down, खून खराबा सारा रोका. They finally managed to stop the jinns, and so victoriously now the angels and Iblis are going back to Allah subhanahu wa ta'ala. At that moment, Allah subhanahu wa ta'ala announces कि I am going to make a khalifa on the earth. मैं जमीन पे एक वाइसरॉय बनाने जा रहा हूँ, एक किंग बनाने जा रहा हूँ जो कि अब यहाँ के अफेयर्स को लीड करेगा. Now Iblis thought obviously that is going to be me because I am like the leader of the jinns, and so jinns में भी अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, तो I am the leader of them, so obviously it has to be me because अभी मैं इतनी बड़ी epic battle रोक के आ रहा हूँ and so on. But Allah subhanahu wa ta'ala told the angels and Iblis कि it's actually not Iblis, rather it's a new creation of Allah subhanahu wa ta'ala, and that's Adam alayhi salam, who's a human being. At that point, Allah subhanahu wa ta'ala कुरान में mention करते हैं कि जो angels हैं, they asked Allah subhanahu wa ta'ala a question to explain the situation कि Allah, why would you create something कि हम तेरी इबादत के लिए काफी नहीं है, तू ऐसी मखलूक क्यों पैदा करेगा जो कि जमीन पे फिर से फसाद करेगी. तो अल्लाह ने कहा कि I know and you do not know the wisdom behind that. So what happened was that the angel said, yani we accept subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, that oh Allah, you know better and we do not know, and so they accepted. So Allah subhanahu wa ta'ala created Adam alayhi salam from clay, and then he put the soul in him, and then when Adam alayhi salam, he was taught the names of everything. He taught Adam alayhi salam the names of everything. He gave him intellect, a sound mind, and then he told the angels and Iblis who was there कि आदम के आगे सजदा करो. सजदा इबादत का नहीं, ताज़ीम का, to honor someone. Like आज भी कुछ cultures में they bow before somebody, it's like a sign of respect. इस्लाम के अंदर सारे सजदे हराम हो चुके हैं, तो हमारे लिए किसी के आगे झुकना भी जायज नहीं है, चाहे वो रुकू की फॉर्म में हो या सजदे की फॉर्म में हो. यूसुफ अलैहिस्सलाम के टाइम तक ये वैलिड था. यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो फादर थे, मदर थे, उनके भाई थे, उन्होंने उनके आगे सजदा किया था ताज़ीम का, ऑनरिंग का. बट आफ्टर दैट दिस वाज आल्सो, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पे आ गए तो सारे सजदे हराम हो चुके हैं, सिर्फ अल्लाह को ही हम सजदा कर सकते हैं. सो एनीवे, उनको कहा गया कि आदम को वेलकम करो एंड बाउ बिफोर हिम. All the angels, millions upon millions of angels, they bowed down
इल्ला इब्लीस, except इब्लीस। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल-कहफ में, काना मिनल जिन्न फफसका अन अम्रि रब्बि अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया, कि he disobeyed Allah subhanahu wa ta'ala, so now will you take him and his offspring as allies, as partners? So Iblis ने refuse किया. Now Allah subhanahu wa ta'ala asked him the question कि या Iblis मा लका, ओ Iblis, what happened to you? Why didn't you bow? So Allah subhanahu wa ta'ala, he already knows, right, why he didn't bow, but he's asking him to teach us a lesson कि हम लोग लोगों पे कभी कभार फतवा लगाते हैं कि मुझे पता है उसने ऐसा क्यों किया होगा, and हम speculate करते हैं. Allah subhanahu wa ta'ala, who knows why Iblis didn't do it, he's asking him ताकि Iblis अपना केस बयान कर दे, so that the thing is out of the bag, the cat's out of the bag basically. So Iblis ने कहा, अना खैरुम मिन्हु, I'm better than him. खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, you made me from fire and you made him from clay. तो मैं क्यों सजदा करूं? यानी कि Iblis was basically the first racist on the planet, because he said मेरा construction material उससे बेहतर है, मैं उससे बेहतर हूं तो मैं क्यों सजदा करूं उसका, without realizing that the command was directly from Allah. अल्लाह ताला डायरेक्ट हुक्म दे रहे हैं, and he says no, मैं क्यों करूं भाई? तो बेसिकली वो था तो बड़ा नेक, लेकिन अंदर उसकी ना एक ईगो थी. There was an ego which was hidden previously, but now it became manifest. So अंदर का जो उसका खबीस था ना वो बाहर आ गया, अंदर का जो उसका प्रॉब्लम था वो apparent हो गया. Because sometimes, you know, हम लोग बड़े अच्छे होते हैं when things are good, but the real test is when things go wrong, then what do you do? That's your real test of strength and character. तो इब्लीस ने उस टाइम पे इनकार कर दिया. अल्लाह सुब्हानहू व तआला told him, now you get out of here. तो उसने कहा, okay, I will leave you, but I want you to give me time till the day of judgment. My last request from you, my last dua, इसके आप मुझे life दे दें till the day of judgment. Allah subhanahu wa ta'ala said, okay, take it. He said, now what will you do with that? He said, I will mislead them all of mankind, all the children of Adam, I will mislead them all. He said, I will come from the front of them, from the back of them, from the right of them, from the left of them, وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, and you will not find most of them grateful to you. Basically, and then he also said, because you have led me in error, I will surely make disobedience attractive to them on earth and I will mislead them all. कि basically आप, चूंकि आपने मुझे गुमराह किया है, इसलिए मैं अब इनको गुमराह करूंगा और मैं इनके लिए जो disobedience को attractive बना दूंगा. I'll make sin look beautiful and I'll make righteous action look ugly. That's what I'm going to do. And ये सारे के सारे गुमराह हो जाएंगे. Now इब्लीस का मसला पता क्या, पॉलिटिकल मसला है. इब्लीस जानता है, वो कहते हैं ना, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे. वो अल्लाह ताला को एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के तहत बताना चाहता है कि you asked me to bow before them. No. मैंने तो एक सजदे से इनकार किया था ना, ये तो रोजाना सजदों से इनकार करेंगे, ये तो तेरी बातें नहीं मानेंगे, ये तो तेरे दीन से मुंह फेर लेंगे. I will prove to you कि जितना मैं बुरा हूं ये मुझसे ज्यादा बुरे हैं. So ये उसका एजेंडा है जो वो प्रूव करना चाहता है. He knows he's going to hell. He knows he's going to hell because उसने अल्लाह ताला का डायरेक्ट हुक्म डिसोबे किया है. But he wants to take as many of us with him as he can. Allah subhanahu wa ta'ala told him, you can try to do this, but you have no power over my believing slaves. जो मेरे नेक बंदे हैं उसमें तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं. So let me tell you this now. You know, I was watching a documentary on, I don't know, it was History Channel or Discovery Channel or Animal Planet, but they were talking about like the most dangerous snakes in the world. Some of the most dangerous snakes. So comparison कर रहे थे different snakes का. And so, is there a snake in the house? So they were talking about different snakes, right? And so one of the snakes they mentioned was the black mamba and the green mamba. So उन्होंने कहा कि जो black और green mamba है, basically this is very very venomous. इसका poison जो है वो बहुत ज़्यादा है. मतलब for example अगर आप उसको 10 में से नंबर दें based on its toxicity level, तो it might get a 10 out of 10. तो उन्होंने कहा कि एक छोटा सा भी जो drop होता है black mamba का या green mamba का, it is enough to kill many men. अगर आप छोटा सा एक drop लेके भी पानी में डाल देते हैं, it could kill many people. So उन्होंने कहा कि जो अपने venom के एतबार से the black and green mamba are extremely deadly. But these are shy snakes. They are not snakes that go into built-up area, go into houses. They'll mostly be found in, like, you know, जंगलों में आपको मिलेंगे. जंगल में इंसानों से दूर रहते हैं. अगर आप वहाँ से गुजर भी हैं, they'll try to escape first, unless you like step on his tail or something, and then it's going to bite you. Otherwise, they'll try to flee from you as an instinct, right? It's a shy snake. दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि आपके पास rattlesnake है और कोबरा है. And it's like these two snakes, rattlesnake मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में, और जो कोबरा एशिया के अंदर, उन्होंने कहा these are deadly snakes because इनका जो venom level है वो 10 में से maybe you get a 6 or a 7. It's deadly but it's not like the mamba. It's not that deadly, but it is deadly now. लेकिन इसका जो
स्ट्राइक रेट है वो बहुत ज्यादा है। तो जो रैटल स्नेक है या जो कोबरा है, ये शाय सांप नहीं है। इट्स नॉट अ शाय स्नेक, इट विल गो इनटू बिल्ट अप एरिया, लोगों के मतलब घरों में मिल जाते हैं, जहां पे जिस जगह पे इनकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है घरों में आ जाते हैं, और ये अग्रेसिव भी बहुत ज्यादा है। So there is a snake, right? And you're passing by it. But if there is a snake and you're passing by it, तो cobra does not flee. Cobra flee नहीं करता, वो वहीं पे खड़ा हो जाता है। He's like, you want to fight with me? वो aggressive हो जाता है एकदम से। वो बाकी सांप भाग जाते हैं। जब उनको कदमों की आवाज आती है ना, वो निकल जाते हैं। Cobra aggressive हो जाता है। Rattle snake aggressive हो जाता है। Starts to, यानी shake its rattle, telling you I'm right here, so you back up. I'm here. I'm not going to move. तो वो अलर्ट कर देते हैं, कोबरा अपना सर निकाल के भाग आ जाता है। एंड सो अगर आप थोड़ा सा करीब आए, इट गेट्स वेरी एग्रेसिव। तो उन्होंने कहा कि जो कोबरा और रैटल स्नेक का स्ट्राइक रेट है वो बहुत ज्यादा है। सो इफ यू कंपेयर डेथ्स पर एनम, मांबा की जो डेथ्स हैं वो 5 होगी साल में, इनकी जो है वो 500 होंगी। नंबर ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड हु डाइड ड्यू टू रैटल स्नेक और कोबरा बाइट्स इज अराउंड 500 पर एनम, एंड दूसरे केस में 5 है। सो दे सेड नाउ इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, when you compare which is the most deadliest, we don't say it's the mamba, we say it might be the cobra or the rattlesnake, for the sole reason कि उनका poison might not be as venomous as some of the other species out there, but strike rate बहुत ज्यादा है, इसलिए it's the most lethal snake out there. Now the reason why ये मैंने कहानी आपको सुनाई है सांपों के बारे में, उसकी वजह ये है कि you know, if I ask you guys in general, how many of you are suffering from or know someone who is suffering from black magic? I might get a few hands up. Yes? So I have a few hands. Still put your hands up. Now if I say to you guys, how many of you are suffering from whispers of shaitan every single day, including myself, it's basically everybody. So we're all suffering from that. So although अगर एक बंदे के ऊपर witchcraft या magic हुआ है, it's deadly, like the mamba attack. It's very painful process. But the point is कि वो हो या ना हो, शैतान तो हर रोज आप पे हमले वैसे भी कर रहा है। You know, every time you think of doing a bad thing, it is that shaitan who's trying to whisper to you to go ahead and do it. A lot like those Tom and Jerry cartoons where you know this red devilish little Jerry pops up and the angel Jerry pops up and they give ideas that yes, kill him, kill him. You know, it's kind of like that when you get these ideas. आपको पता नहीं चलता कि ये आपके ideas हैं. Because the Prophet ﷺ, he said कि शैतान flows in you like blood flows in you. That's how he moves in you. आपको पता नहीं चलता कि these ideas are mine or alien to me. इसका एक litmus test है थोड़ा सा. You know, whenever you get an idea which is brand new, you've never done it before, but now you're trying and you're contemplating should I not? That idea came from shaitan. But जब आप उसको बार बार करते हो ना, पहली दफा किया, दूसरी दफा किया, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी दफा, then वो आपकी second nature हो जाता है. Then आपका नफ्स उस चीज पे set हो जाता है. So the first few times you did it, it was shaitan kind of inciting you towards it. But later on, you kind of go on autopilot. Basically उसके बाद आप अपने लिए खुद ही काफी हो जाते हैं, because आपको उसका नशा हो जाता है या something like that. So फिर आप self-sufficient हो जाते हैं. So this is basically what I'm saying to you. So if you take anything from this workshop, take this के shaitan is your greatest enemy. He is not just your enemy, he is the enemy of your father, he is the enemy of your grandfather, and he will be the enemy of your kids and their kids and their kids till the day of judgment. इतना बड़ा दुश्मन है आपका कि आपको नहीं छोड़ा, आपके बाप को, आपके दादा को, all the way up to आदम अलैहिस्सलाम. और ये गिव अप नहीं करता. अल्लाह ताला कहते हैं अदुव्वुन मुबीन, he is a clear enemy. So treat him like an enemy. So the first thing you have to realize is कि I need to fight against shaitan and his traps. Because one of the first things he'll make you do is to commit shirk. That's his first strike. Because उसको पता है कि जो बंदा शिर्क में मरेगा, he is not getting out of hell. तो पहले वो आपसे शिर्क करवाता है. ऐसा अगर आप शिर्क नहीं करते अल्लाह के साथ, I believe that there is one God, alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah, then वो आपसे और काम करवाता है. चलो ऐसा करो, फराइज छोड़ दो, जो चीज तुम्हारे पे फर्ज है वो छोड़ दो, नमाज छोड़ दो, फलां छोड़ दो, रोजा छोड़ दो रमजान में. तो he'll make you give up these things. If you don't give up those things, he'll say अच्छा करो लेकिन उसमें शो ऑफ कर लो. Pray, but pray because you want to be seen by people. अल्लाह ताला फरमाते हैं ना फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन, कि तबाह हो गए वो नमाज पढ़ने वाले जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन लेजीनेस में या फिर दिखावे की नमाजें पढ़ते हैं. So he'll make you do that. If you can't do that, then he'll make you become lazy in acts of worship or righteousness. For example, आप लम्स में जा रहे हैं, somebody you see dropped a bunch of books. You were perfectly okay to pick up those books and help this person out, but you were like, leave good deeds.
गुड डीड्स के बारे में ना आपको वो यानी क्या बोलते हैं उसको, यानी इनडिफरेंट कर देते हैं आपको बेसिकली। किसी ने कहा कि फॉर एग्जांपल आप घर में आपकी मदर ने कहा अच्छा मुझे पानी कौन पिलाएगा, यू कुड हैव इजीली डन इट, बट यू केप्ट सेइंग वो पिला देगा, वो पिला देगा। सो व्हाट डज ही मेक यू डू, ही मेक्स यू गो अवे फ्रॉम राइचियस डीड्स, गुड डीड्स। आपसे कहता है चलो अगर बुराइयां नहीं भी करनी है कोई बात नहीं, अच्छाइयां भी ना करो। यू गेट द पॉइंट। कहता है कि अच्छा बुराइयां नहीं करनी, अगर आप बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, हराम नहीं करना, नो प्रॉब्लम, अच्छाइयां भी ना करो। और आपको पता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में फअम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया, कि जिसके स्केल उस दिन लाइट होगा ना, यानी डीड ज्यादा नहीं है, बुराइयां नहीं की लेकिन अच्छाइयां भी नहीं की, जिसके स्केल लाइट होंगे तो क्या होगा, हिज मदर विल बिकम द फायर फउम्मुहु हाविया। The warm embrace that you're looking for on that day will only come from the fire. That's what shaitan does. Unless you actively fight against him. You actually think about this, कि I'm not going to give in to shaitan, I'm going to do what I have to do. So this is as far as the jinns are concerned, nations of the jinn. Okay, now we come to, sorry? Oh yeah, basically I said कि अगर आपको कोई भी चीज नहीं आती है, नया idea, brand new, you never thought about it before, that's from shaitan. But if it's an idea that you've done before, you've done a few times, then this is from your own nafs. Like आपको पता ना कि रमजान के महीने में शयातीन चेंड अप हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग बुरे काम करते हैं ना, ये वो बुरे काम होते हैं जिनकी उनको आदत पड़ी होती है। झूठ बोलता है, बदतमीजी करता है, बैड लैंग्वेज यूज करता है, बैड लैंग्वेज जो ना रमजान में भी कर रहा है, बिकॉज आदी हो गया ना, नाउ इट्स बिकम पार्ट ऑफ हिज नेचर, बिकॉज ही हैज डन इट सो मेनी टाइम्स। इमेजिन द फर्स्ट टाइम you ever used an abusive word, right? The first time you used an abusive, कितना डर लगा होगा उस टाइम पे, did I just say that? Seriously, did I just say that? And फिर हम लोग it's a cool thing, right? कि चलो मैं ये word use करता हूँ तो I'll be like, मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊँगा, I'll be like bigger than my age because I'm using these bad words. So हम शुरू में करते हैं, हमें भी बुरा लग रहा होता है कि you know I don't really like it. What if my dad catches me saying this word? What if my mom catches me? तो मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी। शुरू में हम uncomfortable होते हैं, but you know when you keep doing it a few times, then it becomes second nature. Then every second word is a cuss word. एक टाइम ऐसा भी आता है कि आप उसके बगैर आपका इंजन स्टार्ट नहीं होता, जब तक 10-12 गालियां ना निकालें दिन शुरू नहीं होता, सूरज नहीं निकलता। So ये जो इंसान है ये ऑटो पायलट पे चला गया। Now I don't know how many of you know, but I've seen my fair share of जिनको मैं J days कहता हूँ, my jahili days when I was away from the deen, प्यार से मैं उनको J's भी कहता हूँ, back in my J's. I was completely away from the deen, like maybe about 8 years ago. तकरीबन 8 साल पहले completely away from the deen. मेरी education भी बाहर से हुई, बाहर भी मैं मतलब I was into everything and into the math. I don't need to explain. समझदार हो गया मसाला. So I was into everything and more because I was into extreme sports as well, like skydiving, bungee jumping, scuba diving, तो मेरे जिंदगी में था list of things to do before I die. So I would do those things and I never bothered कि हलाल क्या हराम क्या. I was on proper autopilot. जैसे कहते हैं ना कि I remember I went to a restaurant in South Africa. It's called Carnivores. By the name you can tell they serve only meat, right? So it only serves meat. So मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने कहा कि जी what would you like to have? So I said कि bring the menu. So they showed me the menu. It had like alligator and scorpion and some species of snakes and giraffe and antelope and ostrich and very confusing. Lot of items on the list. I was so confused. I was like, yeah, pata kya? Bring me a mixed platter. He got me a mixed platter, and there were little pieces of meat with like barbecue sauce and something. और हर एक के ऊपर एक toothpick लगा हुआ है, toothpick पे एक झंडी लगी हुई है जिस पे लिखा हुआ है alligator, snake, blah blah blah. मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के पूरी प्लेट रखी. That's autopilot for you, right? That's autopilot because मेरे लिए concern ही नहीं था. Islam was never a priority for me. It was never a priority for me until some things happened in my life which made me come back to the question वो जो बुल्ले शाह कहते थे ना, बुल्ला की जाना मैं कौन. I came to that philosophical question जो कभी कभार रात को आपको भी शायद ख्याल आता हो कि असल में मैं दुनिया में क्यों आया. What is my purpose in life? What is going to happen to me after I die? That $1 billion question that every human being needs to answer for themselves. I've given a talk on purpose of life in the University of Southampton as well to a mostly non-Muslim audience. And I asked them कि आपको ये सवाल खटकता नहीं है? What's going to happen to you after you die? Are you sure about it? And whatever the answer is, are you sure about it? What is the proof for that?
I had to learn the hard way. I had to study different religions and then come to Islam, not like willingly. मैं तो वहाँ जाके जो मर्जी बन जाता, my parents were not going to come after me. लेकिन रिसर्च करते करते मैं फाइनली यहाँ तक पहुँचा. So autopilot से निकलने में टाइम लगता है, but you have to at least start the process. Because Allah subhanahu wa ta'ala says, if you take one step towards me, I take 10 towards you. You walk towards me, I run towards you. But the first step you have to take. ये नहीं कि अल्लाह पहले 10 कदम लेगा फिर आप एक लेंगे. पहल आप नहीं करनी. Whoever seeks will find. Whoever shall seek will find. So now coming back to the issue of jinns. जिन्स के बारे में मैं थोड़ी सी आपको अपडेट दे दूं कि ये मखलूक है क्या. What are they? What can they do? What can they not do? You know, who are these? यानी क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. जिन्स याद रखें हमारी तरह हैं बहुत सारे तरीकों में. They are a lot like us in many ways, and they are different from us in many ways also. हमारी तरह किस तरह से हैं? इनमें भी मेल और फीमेल होते हैं, इनमें भी मुस्लिम और नॉन मुस्लिम होते हैं, इनमें भी पक्के मुस्लिम और 50-50 मुस्लिम होते हैं. 50-50 पता है कौन से होते हैं? आज रात नाच गाना होगा ईशा की नमाज के बाद. 50-50 आधा इधर आधा उधर. तो हमारी तरह होते हैं, मतलब उसमें जिन जूस भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, एथियस्ट हो सकते हैं, 50-50 हर तरह के हो सकते हैं. अच्छा, इसी तरह से they have many languages as well. They have families. They feel emotions like we do, so they can feel angry, sad, happy, love. It all happens with them as well. उनके भी बाल बच्चा होता है, उनको भी कोई रोजी रोटी का बंदोबस्त करना होता है. बट हमारे से डिफरेंस इस तरह से है कि हमारी फैमिलीज छोटी होती हैं, मतलब मे बी 5-7 बच्चे होंगे, ठीक है. उनके यहाँ 50 होंगे, 60 होंगे, ठीक है. हमारी एज होती है 70-80-90 साल, इनकी 400 साल 500 साल भी हो सकती है. अच्छा, डिफरेंस ये भी है कि इनकी कुछ सुपर पावर्स है, मैं आगे जाके बताऊंगा आपको. अच्छा, डिफरेंस ये भी है कि दे कैन सी यू फ्रॉम प्लेसेस वेयर यू कैन नॉट सी देम. सो आई कैन अश्योर यू बियॉन्ड शैडो ऑफ डाउट देयर आर जिन्स इन दिस ऑडियंस. डरने की बात नहीं, रिलैक्स काम डाउन. बिकॉज द थिंग इज आपको पता है आप सबके साथ एक जिन होता है ऑल द टाइम. उसका एक नाम है, आप करीन कहते हैं. There is a jinn with you when you are born, right? जब आप पैदा होते हो आपके साथ एक जिन भी पैदा हो जाता है और वो करीन होता है. वो बेसिकली आपके साथ पूरी लाइफ देख रहा होता है आपकी. एंड दिस इज द जिन बेसिकली जो विस्पर करता है. दिस इज अ बैड जिन, बेसिकली एक इविल जिन होता है. और मैंने बताया जिन अच्छे बुरे होते हैं, तो दिस करीन इज अ बैड वन. एंड बेसिकली वो विस्पर जो आपको आता है ना, कहां से आते हैं? वो बेसिकली जो है ना करीन से आते हैं. द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड हिम, आपके पास भी करीन है? उन्होंने कहा हाँ मेरा भी है, लेकिन मेरा करीन मेरे साथ रह रहे के मुसलमान हो गए. सो अल्हम्दुलिल्लाह ही हैड नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट. नाउ अगर आप अच्छे मुसलमान हैं तो आपका करीन जो है ना बिल्कुल वीक हो जाता है. He like doesn't even give you ideas anymore. It's like बड़े lame से ideas देता है, which you just slap him across the face and he's like, you know what. And so अगर आप ईमान में weak हैं, then आपका करीन becomes like really big, and he's like, you know, I own this person. I own him. जो मैं आइडिया देता हूँ ये करता है, जो उल्टा आइडिया देता हूँ ये फौरन कर जाता है. So इब्न अल-क़य्यिम एक बहुत बड़े आलिम थे, वो अपनी किताब में लिखते हैं दवाए शाफी में कि जब आप अपने करीन की बात नहीं सुनते ना तो उसको लिटरली थप्पड़ पड़ते हैं आपकी तरफ से, मेटाफोरिकल थप्पड़ पड़ते हैं. एंड ही गेट्स सो इंसल्टेड कि जब क्या आप उसकी बात नहीं मानते, कि ही गेट्स वीकर एंड वीकर एंड वीकर. एंड फिर वो रात को जाके बाकी शयातीन के पास जाके रोता है कि मेरा जो बंदा है मुझे बहुत मारता है. Every time I give him an idea, he slaps it across my face, and he does something really opposite. Like for example, अगर आपको आइडिया है कि जिन आपका ये कह रहा हो कि this person जिसकी आपसे लड़ाई हुई है, go and push him, so he's like, go and push this guy, or go and slap him, या कम से कम कोई ताना ही दिया उसको. तो आप you walk toward this person, but there is goodness inside you. So as you walk to this person, आप उस पर तरस भी आता है कि मेरा क्या इसने बिगाड़ा है. I mean, so maybe इसमें मेरी भी गलती होगी, उसकी भी होगी. So आप कहते हो अस्सलाम वालेकुम, and you shake the person's hand, you're like, you know what, let's just call it quits and all. तो इस पे आपके करीन को थप्पड़ पड़ता है, because उसने आपको आइडिया दिया था कि इसको मारो, बदतमीजी करो, एग्रीवेट करो, आपने नहीं किया, तो he gets pushed back because of that. So these are just some examples of what jinns are like. ठीक है? Now in the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he mentioned some other qualities which are similar between human beings and jinns. And so इसके अलावा 3 types mentioned की jinns की. Humans के बारे में तो मैंने comparison कर दिया आपको. 3 types of jinns as mentioned in the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. आपने कहा एक जिन्स होते हैं
जो फ्लाइंग वाले होते हैं, दे फ्लाई इन द एयर. सो दीज आर द जिन्स दैट फ्लाई एंड दे ट्राई टू ईव्सड्रॉप ऑन द एंजल्स. बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब कोई काम एग्जीक्यूट करवाते हैं ना, तो एंजल्स को ऑर्डर देते हैं. एंजल्स उस काम को डिस्कस करते हैं कि हाउ वी गोइंग टू डू दिस. फॉर एग्जांपल इवेंट्स पर्टेनिंग टू योर लाइफ, कि आपके घर में बरकत आए, रहमत आए, किसी के रिस्क में इजाफा होना है, किसी के यहाँ कोई डेथ है, कहीं पे कोई कैलामिटी है. ऑल ऑफ दिस थिंग्स कम डाउन एंड दिस हैपेंस एट द नाइट ऑफ अल कदर. लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र. सो द एंजल्स कम डाउन विद द डिक्री ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एवरी ईयर. ठीक है, एंड दिस हैपेंस ड्यूरिंग द डे एज़ वेल. उस नाइट को तो सारे आ जाते हैं ना. तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु, उस दिन तो जिब्रील अलैहि सलाम भी उतर जाते हैं. On that night, even Jibreel alayhi salam comes down. So generally, angels keep coming down to your house, bringing blessings and so on. तो ये जब आपका केस डिस्कस कर रहे होते हैं आपस में कि इसके घर पे ये लेके जाना है, इनके यहाँ बेटा हो रहा है, इनके यहाँ बेटी हो रही है, इनके साथ ये, इनके साथ वो है, तो these jinns they try to eavesdrop. And the Prophet said कि then these jinns are pelted by rocks or like meteors basically. So वो उनको पत्थर पड़ते हैं, वो भागते हैं. यानी जो stars का purpose बताया, it is लक़द ज़य्यना as-समावात, it is to beautify the sky. It is for the traveler to see the way, and it is for rujuman lish-shayateen. It is to do rajam or to pelt the shayateen. So you know when you see like these romantic comedies or movies where you know the guy and the girl are like, oh that's a shooting star. Why don't we wish upon a star? आपको नहीं पता उस स्टार के आगे एक जिन अपनी जान के लिए भाग रहा है. एक बंदा मर रहा है, आप कह रहे हैं वाह that's so romantic. वो कहते हैं ऐसा रोमांस तुम्हें नसीब हो. So the thing is that they are pelted by meteors when they go into the sky और उनको वापस भेज दिया जाता है. So they try to eavesdrop. And the Prophet ﷺ said कि they take one truth that they have heard and they mix with it 99 lies. तो एक सच बात को लेते हैं, उसमें 99 झूठ मिक्स करते हैं and then they package it and they give it to the soothsayer या fortune teller या जो भी है उसको बताते हैं, फिर वो आगे और आपको उसके ऊपर मिर्च मसाला लगा के आपको देता है. So that's the first type, जिन जो fly करते हैं. अब ये जो flying jinns हैं, they can travel at the speed of light or maybe more, wallahu alam. But they can travel at very amazing speeds. और ये some scholars say कि this is the maximum number of jinns. जो type सबसे ज़्यादा है वो ये flying वाले हैं. So they don't interfere with you. They might be in the airspace up there somewhere flying about. The second type of jinns are those that can shapeshift. Shapeshift? Yes, shapeshift. They can change their shape because jinns की कोई shape नहीं है. ये मेरी theory मैं आपको बता रहा हूँ. So don't hold me to it. But this is my theory, which is कि Allah Subhanahu wa Taala has made us from clay. Clay is three-dimensional. Yes, आप clay से बर्तन बना सकते हैं. लेकिन जिन जो है, they are made of a smokeless fire. अब्दुल्ला बिन अब्बास कहा करते थे कि जो flame है ना, flame, वो flame का जो hottest part होता है कौन सा होता है? टिप के अंदर. टिप अंदर जो है ना वो बिल्कुल जीरो होता है, मतलब उसका टेम्परेचर कुछ नहीं होता, रूम टेम्परेचर. So you can try this at your own risk. अपनी उंगली लेके ना फ्लेम के बीच में डालने से nothing will happen to your finger. सिर्फ थोड़ी सी ब्लैक हो जाएगी, otherwise you won't feel anything. उसके ऊपर फ्लेम लग के ना थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाएगी, otherwise it will be just fine. Take a pencil into it, take a toothpick into it. You take a toothpick, put it inside the flame, जो उसके मिडिल वाला पोर्शन है, nothing happens. अंदर ऐसे जैसे रूम टेम्परेचर है. लेकिन जो उसका टिप है ना, उस टिप पे भी जो इनविजिबल पोर्शन होता है फ्लेम का, जो कि अगर आप लाइट में देखो तो वो हल्का सा वेवी सा आ रहा है, that part is invisible and it is the hottest part, and that's what Abdullah ibn Abbas said कि इस मटीरियल से जिन बने हुए हैं, that invisible part. So this is my opinion, this is a type of energy, and so you cannot give energy a shape. Like what does an X-ray look like? What does gamma radiation look like? What does sound wave look like? So we don't have a shape for these things. So likewise जिन्स की कोई shape, जितने भी scholars हैं वो कहते हैं कि जिन shape उसकी नहीं है. हाँ, अगर वो shape shift कर जाए तो they can take the form of something that we can see. So for example, they can take the form of a black dog. They can take the form of a snake. They can take the form of human beings, and perhaps a few other things as well. लेकिन जो shape shift जब वो करते हैं, it's not an easy thing for them. It's not very easy कि वो हर वक्त ही बदल सकते हैं. It's difficult. So what they do is कि कुत्ते के बारे में आता है कि not कि every यानी black dog is मतलब यानी suspect, but हम ये कहते हैं कि अगर किसी जिन ने dog की shape लेनी है, तो he won't become like a golden retriever or like a poodle or something. If a jinn has to shapeshift, he will transform into a black dog. हदीस में जो अल्फाज हैं वो black कुत्ते के आते हैं. अच्छा, इसी तरह से स्नेक की फॉर्म में भी आ सकते हैं. उसके बारे में भी हदीस है कि एक सहाबी थे, उनके घर के अंदर एक सांप था. He tried to kill him and the sahaba said कि हमें नहीं पता किसने किस पे अटैक पहले किया, but both of them died.
So the snake killed him and he killed the snake, and the Prophet said after this कि काश वो उसको कह देता कि यहाँ से चले जाओ अल्लाह के नाम पे, तो वो चला जाता, वो जिन था. So this basically goes to show if you ever come face to face with a creature like that, a snake or something, you should tell it to leave by the name of Allah subhanahu wa ta'ala. In what language though? क्या कहें? English में कहें I beg to state, I humbly request you, please kindly leave this. You want make friendship with me? इंग्लिश में कहें या उर्दू में कहें किसी प्लीज मैं मुल्वाना गुजारिश है आप काइंडली यहाँ से तशरीफ ले जाएं, या फिर आप पंजाबी में कहें मैं तुम दस रहा तुम सुना क्या अल्लाह का वास्ते ही वगैरह वगैरह, या उसको पश्तो में कहें मस्ती मका बड़ा. Basically the scholars say you can talk to them in whatever language because I told you they live far longer than you. And so अगर एक जिन किसी जगह का मकीम है, किसी जगह पे कहीं पे यानी जो है सेटल किया हुआ है, तो वो वहाँ की लैंग्वेजेस जानते हैं. And so they understand whatever language people speak in that place. तो इसलिए आप कहते हैं कि जो अल्लाह के नाम पे तो वो निकल जाएगा, और अगर ना निकले then that's a real snake and you should probably kill it. So that's the thing. So that's one. तो ये शेप शिफ्ट करते हैं. अच्छा ये ह्यूमन फॉर्म में भी आ चुके हैं. For example, there is a hadith of Sayyidina Abu Huraira he found a man stealing from the Baitul Mal, and he caught him the first day, the second day, the third day, until the guy said please मुझे छोड़ दो ये वो. तो आपने कहा कि नहीं मैं तुम्हें आज तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके जाऊंगा. तो इस कि अगर मैं तुम्हें कुछ सिखा दूं ऐसी बात जो तुम्हें बेनिफिट करेगी, तो इस कि अच्छा what is it? He said कि you should recite Ayatul Kursi before you go to sleep, because if you do that the shayateen will not be able to touch you. And when Sayyidina Abu Huraira told this to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said कि था तो वो झूठा लेकिन इस दफा सच बोल गए और वो शैतान था. So this was a devil in the form of a human being. Likewise, Battle of Badr पे भी ऐसे हुआ कि one of the shayateen he took the form of Suraka bin Malik, who later became a companion, and he went out and he said कि I'm going to fight with you guys and so on. तो वो भी एक हमारे स्टोरी है. फिर when the Prophet sallallahu alaihi wasallam उनका प्लॉट चल रहा था उनको assassinate करने का, कुरैश प्लान कर रहे थे, उस टाइम पे भी Iblis came in the form of a human being and told कि ऐसा करो सारे मिल के हमला करो, 14 कबीले हैं, 14 के 14 यानी एक बंदा भेजो रिप्रेजेंटेटिव, सारे मिल के हमला करो, and so the blame will get distributed. So these are the kind of things where we find कि it happened कि it came in the form of a human being. Now this is obviously जो shape shifting types हैं. ये क्या करते हैं shape shift करके for some kind of strategic goal or to get food. जिस तरह वो बैतुल माल से चोरी कर रहा था, some scholars said कि जब ये dogs बनते हैं तो ये dumps पे जाते हैं, वहां से खाना लेके आते हैं, खाते हैं वगैरह वगैरह. So this is basically why they would shape shift. And the last category are those jinns that are like Bedouins. They are like gypsies. They travel from place to place. इसको क्या कहते हैं? खाना बदोश कहते हैं, जो travelers होते हैं. So they move from place to place. And वो क्या करते हैं कि उनको जहां पे भी कोई ऐसी जगह मिलती है जहां पे लोग नहीं है, abandoned places, वहां पे ये लोग they want to stay away from you. Jinns, नहीं, believe it or not, they don't want to mix with you. They want to stay as far away from you as possible. तो कभी उन्होंने कहीं पे पड़ाव डाला होता है, आप वहां पहुंच जाते हैं, फिर आप कहते हो the house is haunted. Obviously वहां पे 60 बंदा रह रहा है, आप और आपकी बीवी वहां जा रहे हैं, naturally they're going to kick you out. They're like तुम दो के पीछे हम 60 बंदा घर छोड़े. No, son, you are leaving this house. So then the lights shake and the wind comes to you and all of that happens. Okay, so you're like, oh, this house is really spooky. आपको पता है मैं जा रहा हूँ, I mean I'm sure लाहौर में भी होंगे, but इस्लामाबाद में I know there are certain houses जिसमें कभी कोई बंदा नहीं ठहरता. Every time somebody gets the house on lease, they leave. और वो convinced है beyond shadow of doubt कि there is something in there. And वो house literally dirt cheap जा रहा होता है. वो मालिक जो है मकान का वो कितना कम कर चुका होता है कि बस कोई बंदा ले ले, but जो जाता है 2 हफ्ते बाद बाहर आ जाता है, हफ्ते बाद बाहर आ जाता है कि जी नहीं, there is something strange happening in this house. So sometimes jinns can be very stubborn also. Although naturally, often times they just leave. जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कोई आ रहा है वो कहते छोड़ो यार निकलो यहाँ से, क्या इनके मच्छर लगना. लेकिन समटाइम्स वो कहते हैं नहीं मच्छर लगना पड़ेगा बिकॉज दिस इज नाउ माय रिस्पेक्ट माय फैमिली. सो वो फिर कोई गॉडफादर टाइप जिन होगा जो कहेगा कि जी you get out of the house, I'm not getting out of the house. So वो फिर काफी एग्रेसिव हो जाते हैं. Now ये जो जिन्स हैं जो कि ट्रैवलिंग जिन्स हैं, they could come to your house too. Not that I want to scare you, but they could come to your house. Why would they come to your house? आप घर पे नहीं थे, घर खाली था, आप कहीं वेकेशन पे गए हुए थे या ऑफिस गए हुए थे, काम पे गए हुए थे, पढ़ने गए हुए थे, घर खाली था, nobody was there. So like the jinns family came, dropped by. वो कहीं से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि ये घर जो है खाली खाली सा लग रहा है. So they came and like, hello, this looks like a very decent house. Look, flat screen TV, you've got the nice bedroom, you've got the inbuilt shelves, you've got spotlights, this is amazing.
this could be a beautiful place to stay. तो वो ठहर जाते हैं until you come home. And they're like, okay, false alarm, let's get out of here. So वो चले जाते हैं. Now, the Prophet ﷺ said that whenever you enter your house, you should say Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Even if you enter an empty room, you should say Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So this is a habit that I've adopted in my house and with my family members as well. हम लोग जब भी जाते हैं, मैंने सबको बताया हुआ है कि आप जिस भी कमरे में जाए, आप सलाम कर दें. तो maybe there's people you don't know कि वो वहाँ पे हैं. So अगर आप सलाम करके आते हैं तो वो सुनते हैं कोई मुसलमान आ रहा है ना, अस्सलाम वालेकुम, ओ लेट्स गो, तो वो निकल जाते हैं वहाँ से. तो मैं पिछले जब से दीन पे आया तब से काम कर रहा हूँ. 7-8 years हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आई एम वेटिंग फॉर द डे जब आवाज आएगी वालेकुम अस्सलाम. बट इट हैजंट हैपेंड सिंस. और आपने यानी आपसे ने ये भी कहा कि व्हेन यू लाई ऑन योर बेड, before you lie on the bed, you should dust off the bed and say Bismillah Allahu Akbar. And when you go to your bed, right, you should just हाथ मार दे थोड़ा सा and say Bismillah Allahu Akbar, dust off the things a little bit and then lie down. Because imagine you come home without saying salam and you come in quietly and you come straight to your bed and body slam. So वहाँ पे दुश्मनी create हो सकती है. And believe me, there are cases जहाँ पे people have unintentionally hurt the jinns. Unintentionally. How that happens, wallahu alam, I don't know. But somehow कभी कभार वो hurt हो जाते हैं. I know my own maid who works in our house. She's from Sialkot. Once she went to her village and वहाँ से उसका फोन आया कि उसकी जो भाभी है, she was having fits. And she said कि she's possessed. मतलब उसको थोड़ा बहुत पता ही है जो यानी उसके साथ जो ना हमारे साथ रह रखे. तो उसने कहा कि साहब जी उस पर जिन चढ़ा हुआ है. तुम्हें कैसे पता है? उसने कहा बिकॉज वो जो हरकतें कर रही है वो उसी तरह से जिस तरह आपने बताई थी. And then when I asked her कि what happened, तो उन्होंने कहा कि she basically went out with my brother. And वो लोग मगरिब के बाद बाहर थे. And they basically एक जगह पे इसने जाके ना she went to relieve herself and she did that by a tree. Now Prophet ﷺ has told us not to relieve yourself near trees because बात ये कि वो एक तो लोगों के बैठने की भी जगह है and you're gonna make it filthy. Also your brothers from the jinns can also stay there. वो भी वहाँ stay करते हैं. So maybe आपने उनके घर को या उनके एरिया को ruin किया and because of that they took it personally and so they can possess you for that for that reason. तो अगर शैतान आपको possess करते हैं या आपको tease करते हैं, tease करने के पीछे 3 वजूहात हो सकते हैं. 3 reasons why they would tease you or they would affect you. Number 1, they are mischievous. They're just doing it for fun, which is extremely rare. Extremely rare. अच्छा, for example, अल्लाह मुझे माफ करे, बचपन में हम ना कभी कभार अंडे मारने जाया करते थे लोग. So the thing is, I didn't have a problem with anyone in particular, but we would go like we were teenagers, so we would go like in a car and uncle टाइम क्या हुआ है बेटा 8 बज के अंडा मारा और भगा दी गाड़ी. एक बंदा रोड साइड के ऊपर यूरिनेट कर रहा है तो उनका ओए अंडा मारा तो. Now I don't know this person and I'm sure he doesn't know me, but now he will and he won't forget this. But the thing is कि हम लोग क्यों करते थे ऐसे शुगल के लिए. But this is very rare. मतलब it's not like मैंने अपनी जिंदगी में अंडे ही मारे हैं बस लोगों को. This was a very rare occurrence. कभी कभार सारे cousins इकट्ठे हुए हैं, मूड बना तो कर दिया. Please don't try this at home. ठीक है? Please do not do this ever. ठीक है? So we did it because शुगल के लिए. इसी तरह से कभी कभार जिन्स के भी यंगस्टर्स जो हैं तो शुगल हो सकता है. So maybe ये जो आंटी हैं, आयरिश वुमन जो थी, इनके घर में हो सकता है कोई शैतान जिन भी हो सकते हैं. मतलब उस तरह के जो कि नोटी बन रहे हैं. वो कहें यार अभी देखना मैं लाइट लाऊंगा, देखना आंटी कैसे चीज. वो कहता होगा बाकी चीजों को जानी है चेक कर दो. हैशटैग पिंडी बॉय. हैशटैग जी राजा जी. तो खैर ये कर सकते हैं ना कि ओके अच्छा देखा अभी मैं इसके लिए डस्टबिन मांगा तो तूने ये किया फ्लैट देखी डस्टबिन फेंकता हूँ. वो भी उसको भी ट्रम्प कर रहा है. सो एवरीवन इज ट्राइंग टू बीट द अदर. तो ये होता है बट दिस इज वेरी रेयर कि जिन्स वुड डू दिस बट दे डू समटाइम्स प्ले प्रैंक्स बिकॉज़ आई सेड दे हैव फीलिंग्स एंड इमोशंस टू. This is also very rare. The second reason why a jinn would mess with you is if you have messed with it. So आप घर में आए, you were careless, आपने किसी जगह पे ऐसे चले गए सुनसान जगह पे, you like set some place on fire, like for example आपने किसी दरख्त को जंगलों को आग लगा दी. अब वो एक populated area था, you had no clue, but you set their house on fire, and now they're going to come after you. या फिर आपने वहाँ पे urinate कर दिया जाके या कुछ और कर दिया. इस तरह के वाक़यात जो हैं have led people to be hurt by the jinns. And possession के cases भी इस तरह के हुए हैं, but this type of possession is not normally very long. वो थोड़ा सा अपना revenge लेके चले जाते हैं. But the last and final reason why a jinn would mess with you is if actually someone sent one after you.
and that's where magic comes in. जिन otherwise आपको affect नहीं करेगा. मैंने कहा they want nothing to do with you. Like you know a dog for example. A dog doesn't want to mess with you unless someone sends one after you. आप अगर सड़क पे जा रहे हैं, कुत्ता नजर आता है, he's going to mind his business. He's going to go about his business. Unless वो कोई generally aggressive dog है, he's had some issues he's dealing with, right? And so he starts growling at you. You touch the ground and it runs. आप सिंपली जमीन को हाथ लगाना ऐसे करके तो उसको पता है कि this guy means business. ये को पत्थर मारने जा रहा है. आप सिर्फ अपने पाँव को टच करें वो भागने शुरू कर देता है. So they don't want to mess with you unless you know somebody actually sends a dog after you. उस केस में कुत्ता अपनी salvation को भी भूल जाता है कि मैं भी मर सकता हूँ इस प्रोसेस में, but then he goes after because he is bound by a command or by someone who's controlling him. कि go boy, succumb or you know charge or something like that. तो इसी तरह से जिन्स भी अटैक करते हैं जब जादूगर जो है उनको लगवाता है आपके पीछे. वो कैसे होता है वो मैं आगे जाकर बताऊंगा. बट अभी के लिए मैंने आपको बताया कि 3 टाइप्स ऑफ जिन्स हैं और 3 वजूहात हैं मेनली जिसकी वजह से जिन आपके साथ लाइफ में इंटरफेयर करेगा. और ये ऐसी चीजें जो कि इतनी कॉमन नहीं है, sometimes it's few and far between. Now let's come to the superpowers. You might be wondering, अच्छा जिन क्या कुछ कर सकते हैं? So number 1, jinns have invisibility. They can see you from places where you cannot see them. Number 1. Jinns have incredible speed. Number 3, jinns have strength. उनकी ताकत भी आपसे ज्यादा है. Average मैं कहूँगा कि maybe 4 times ज्यादा है. 3 to 4 times. Some could be much more than that. Like सैयदना सुलेमान जो थे ना, the Prophet Solomon, उनके पास अल्लाह ताला ने उनको powers दी थी. His miracle was he could talk to the animals, the birds, even the jinns, and he could talk to even the ants, and the ants could understand it. Surah Nabal में उसका वाक़या भी दिया हुआ है. So Sayyidina Sulaiman, when he would come out of his palace, imagine, you'll forget Chronicles of Narnia or anything like that. When he would come out of his palace, he would see like an army of lions. He would see an army of elephants. He would see an army of human beings, an army of birds, and then there's an army of jinns, and many other armies as well. So he asked, where is the woodpecker? Woodpecker कहाँ चला गया? तो उन्होंने कहा वो तो गायब है, ड्यूटी पे नहीं है. He's not reporting to duty. उन्होंने कहा कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, वो कहाँ चला गया? तो उन्होंने फिर वो वापस आके कहा sorry मैं actually news लेने गया था and so on. So Sayyidina Sulaiman asked one of the jinns, group of jinns, कि who will bring me the throne of the queen of Sheba? Queen of Saba का throne कौन लाके देगा? तो one of the ifrit होता है बहुत powerful jinn. It's like a type of jinn जिसको हम कह सकते हैं कि the incredible hulk of jinns. Like अगर कोई गिनीज बुक ऑफ जिन रिकॉर्ड्स होता तो उसका ये हैवीवेट चैंपियन होता. वो जो जिन था ना वो कहता है कि मैं ला देता हूँ आपकी सीट से उठने से पहले. बिफोर यू स्टैंड अप फ्रॉम योर सीट, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर यू टू गेट अप फ्रॉम योर सीट? नॉट इवन अ सेकंड, राइट? यू जस्ट गेट अप. उसने कहा आप उठे, मैं इतनी देर में थ्रोन ले आता. कहां से? जेरूसलम से चलूंगा, यमन तक जाऊंगा. दिस इज 2000 किलोमीटर्स गोइंग, 2000 किलोमीटर्स कमिंग बैक. He said, I will do it before you get up from your seat. And this throne must have weighed at least 3 to 4 tons. इतना बड़ा तख्त है, मैं उठा के ले आता हूँ. Now again मेरी theory है, you don't have to treat it like the Quran and Sunnah. I personally think, or I'm of the opinion, कि it's not that this jinn was about to actually physically move something which is 3 or 4 tons across the desert and the forest to Sayyidina Sulaiman. Because what would that do? That would create a throne-shaped hole in the palace walls. Does. कभी देखा टॉम एंड जेरी कार्टून में जब जेरी टॉम के पीछे बम बांध देता है धूम के साथ ना, तो then Tom runs. So he goes straight through the wall, and every wall has a Tom-shaped hole in it. Does. So I don't think that that's what the jinn had in mind. कि जी मैं थ्रोन को लाऊंगा और दीवारों को तोड़ता हुआ, दस्तों को काटता हुआ, पहाड़ों के बीच में से गुजार के उसको ले आऊंगा. That's not what he had in mind. I think so कि कुछ सीन ऐसा है कि जो जिन्स हैं, some of them, not all of them, have the ability to transfer matter into energy and back from energy to matter. So that he said कि आप उठे मैं उससे पहले ले आता. Like that. Basically teleportation. Something like that. Now, if Reed can teleport like something which is 2000 kilometers away, weighs about 3 tons, heavyweight jinns. Normal jinns जो हैं, they can also teleport things or maybe make things disappear rather. Let's just say that. For example, this can disappear. Your money can disappear. Files can disappear. Jewelry can disappear. Laptops can disappear. Mobile phone can disappear. ये सारे वो वाक़यात हैं जो मैंने first hand सुने में. Somebody comes up to me and says कि क्योंकि देखिए I am in this field, right? So I get like calls. हफ्ते में कुछ 6-7 calls जरूर आती हैं. People talking about issues relating to magic. कभी कभार वो झूठी भी होती हैं, कभी कभार उनका वहम भी होता है, कभी कभार वो कोई psychological मसला भी होता है. Sometimes it's that. You know, sometimes a person might say, "Zah bhai, me and my wife are not getting along.
Do you think it's magic? I would say no. Reason being कि आपकी कोई incompatibility भी हो सकती है. But sometimes it is magic. Sometimes the thing is so weird कि it's actually magic. One guy said to me, "जा भाई मुझे ना घर में ऐसे ना दीवार पे आवाज आती है कुछ स्क्रैच करे." मैंने कहा मेरे भाई बात सुनो, मतलब जिन सारे काम छोड़ के तुम्हारे घर में आके उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसके सुबह काम पे जाना होता है, वो सारे काम छोड़ के तुम्हारे कमरे में आके मैं must be something else. So normally whenever somebody comes up to me with something like this, I normally dismiss it and I say, don't tell me until you have clear evidence of something happening. And you know what clear evidence क्या होता है? People who have sent me pictures or have shown me कि उनके घर में blood stains आ जाते हैं out of nowhere. Like for example कपड़ों पे blood stains, यानी बैठे हुए blood. And one family I met just 2 weeks ago. उन्होंने कहा कि हमारी पूरी फैमिली लिविंग रूम में बैठी हुई थी, आउट ऑफ नोवेयर इट्स एज इफ किसी ने वो जो स्प्रे बॉटल होती है ना उसके साथ सब पे खून फेंका एंड सब के कपड़ों पे ना ब्लड स्प्लैटर एंड दे लुक्ड अप, देयर वाज नथिंग एंड दे टोल्ड मी कि फॉर एग्जांपल घर के अंदर ये बकरे की सीरी जो है ना वो टेबल पे पड़ी होती है. समटाइम्स दिस हैपेंस. जस्ट आने से 2 दिन पहले अ सिस्टर सेंड मी पिक्चर ऑफ अ डेड क्रो इन हर हाउस कि किसी ने, ये हमारे घर में रोज एक कौवा मरा होता है और गेट बिल्कुल फुट स्टेप के बाहर पड़ा होता है. एंड अभी रिसेंटली उन्होंने बताया उनका वो लोग कहीं गए हुए थे, वापस आए तो गेट जो था ना, देयर गेट वाज एक्चुअली कुंडी ताला लगा हुआ है और गेट को किसी ने तोड़ दिया. यानी कि वो जो ताला कुंडी लगी हुई है, कुंडी ताला लगा हुआ है लेकिन उसको बोल्ट से उखेड़ दिया किसी ने एंड इट वाज रिप्ड ओपन. एंड जो साथ वाले थे नेबर्स ने कहा कि वी थॉट कि किसी गाड़ी ने टक्कर मारी आके, बट देयर वाज नो कार, देयर वाज नो नथिंग, देयर इज नॉट इवन अ डेंट ओवर देयर. देयर इज नॉट इवन अ डेंट. उस गेट पे डेंट तक नहीं पड़ा हुआ. Then how on earth did you just rip off? यानी होता है कि ताला तोड़ दिया आपने, सब समझ आती है. वीकेस्ट पोर्शन वो ताले वाला है, उसको हिंज से ही बाहर निकाल दिया आपने. अजीब. सो इस तरह के वाकयात होते हैं. लाइकवाइज ये चीजें, अजीबोगरीब चीजों का घर से मिलना, चीजें गायब होना, यानी these are supernatural phenomena जो कि लोग फेस करते हैं. When they talk about that stuff, then we say okay fine, it might be something spiritual. So जिन्स की पावर में मैंने आपको बताया उनके पास ये सारी पावर्स हैं. अच्छा, नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि अच्छा सारी पावर अगर उनके पास है तो फिर हम किस खाते में अशरफुल मखलूकात हैं? यस यस, सारी पावर्स उनके खाते में है तो हम अशरफुल मखलूकात कैसे हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन. वी हैव क्रिएटेड मैन इन द बेस्ट ऑफ मोड्स. सो हाउ आर वी अशरफुल मखलूकात? हियर्स व्हाई. यू नो, मैंने आपको एक चीज नहीं बताई जिन्नों के बारे में. वो ये कि जिन्नों का जो आईक्यू लेवल है ना वो तकरीबन 7-8 साल के बच्चे का होता है. So jinns are not like super geniuses. They are very childish in the way they deal and so on. And so Allah subhanahu wa ta'ala ने आदम अलैहि सलाम को हर चीज का नाम सिखा दिया. आदम अलैहि सलाम and we, being his offspring, have the power to convert plastic into a remote control. We have the power to make metal into a laptop and to make a projector and to use this as a weapon and to use a gun or a rifle and to create atomic bombs and to create robots, to create planes, aircraft, all of these things we can do. अल्लाह ताला ने आदम अलैहि सलाम को हर चीज के बारे में बता दिया. ये है, ये. Now we have the power to manipulate tools. यानी जब आप किसी कुत्ते को पत्थर मारते हैं ना, कुत्ता वापस पत्थर आपको नहीं मार सकता, because कुत्ते को पता है ये मेरे स्किल सेट में नहीं है. I cannot pick up a stick and run after the human being. So you know what? Every single creation of Allah subhanahu wa ta'ala is afraid of you. Every single creation of Allah subhanahu wa ta'ala. I had the opportunity to go to South Africa for a safari. And मैं उस टाइम पे अपने जेज में था, still in my jail. So I told the driver, हम लोग open top jeep में थे and we were in the wildlife park. So I told him कि वहाँ पे wildlife park में पिंजरे में कुछ नहीं होता, everything is out in the open. So मैंने उसको कहा I saw a herd of zebra and I said कि take the jeep right in between them. तो वो उनके बीच में लेके जैसे ही बीच में गए तो वो zebras left right हो गए. फिर I saw a herd of giraffe, very beautiful, tall, elegant. I said इनके बीच में जीप ले जाओ. उनके बीच में लेके वो भी आगे पीछे हो गए, भाग गए. फिर मैंने देखा एक जगह पे rhinos. So I said इनके पास 3-4 ही थे. उनके पास मैंने कहा ले जाओ आहिस्ता आहिस्ता. He was like really scared, like नहीं क्या कर रहे हैं आप? नहीं just ले जाओ. आगे गए, rhinos भी मुंह पीछे करके चले गए. Elephants का herd देखा हो तो घुसा दी जीप. मैं इधर भी ले जाओ. अंदर गए वो भाग गया आगे पीछे. Finally I saw a pride of lions. So I said go. He said you're going to get me killed. I said no please. Go as far as you can.
तो वो उसको अपनी जान की फिक्र पड़ी हुई थी, ओपन टॉप जीप थी। सो व्हेन वी वेंट क्लोज तो आगे क्या हुआ कि वो जो लायनेसेस थी वो पहले खड़ी हुई, देयर वर अबाउट मे बी 6-7 लायनेसेस एंड अ बंच ऑफ कब्स एज वेल। तो वो लायनेसेस खड़ी हुई, उन्होंने में देखा, उन्हें सोचा कि जी क्या इनके साथ इनके मुंह लगना, वो आहिस्ता आहिस्ता चली गई वहां से। पहले लायनेसेस गई, उनके पीछे उनके बच्चे भी आ गए। नाउ द ओनली वन लेफ्ट नाउ वाज द लायन, द मेल लायन, ठीक है। एंड वो जो लायन था वो बैठा हुआ है। मैंने कहा थोड़ा सा और करीब करो, थोड़ा सा और करीब करो। वो भी बड़ा जो ना रिलक्टेंटली ड्राइवर आहिस्ता आहिस्ता जीप लेके जा रहा है। तो कुछ देर के बाद लायन टुक नोटिस कि हम करीब आ रहे हैं। उसने ऐसे ऊपर देखा, ही yawned, then he got up, then he shook himself, सारा उसने डस्ट शेक ऑफ की, then he just trotted off in a direction। तो मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि इंसान से ना सारे ही भागते हैं, the only difference is किस स्पीड पे भागते हैं। जंगल का बादशाह भी आपसे भागता है, he doesn't want to do anything with you as well, he wants to move away from you। उसको पता है कि पता नहीं क्या कर देगा। we don't understand these people, बड़े unpredictable होते हैं, इसको पता नहीं लगता। कभी हमें बिस्किट लाना शुरू कर देते हैं, कभी ऊपर से पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। we don't understand these people, I don't know how they work, especially पाकिस्तानी जूस में जितने जानवर कंफ्यूज हैं। I feel so sorry for those animals। मैं लाहौर ज़ू गया, I think अभी कोई 6 महीने पहले। I took my family with me। अच्छा हम लोग लायन कह रहे हैं, I took my kids with me and they're like, hey so cute, hey here you go, hey kitty kitty, hey kitty kitty। और वहाँ पे आ रहा, ओए पत्थर मार के what type of double signaling is this? यानी मेकअप, या तो मैं भी पत्थर मारता हूँ, दोनों मिलकर पत्थर मारते हैं ताकि एक सिग्नल दे उसको बेचारे को। एक दोनों उसको बता रहे हैं kitty kitty, ऊपर से पत्थर मार रहे। So make up your mind guys, you know, so it's so confusing for these animals, they don't know, I mean I don't blame them, they're very right to be afraid of us, बड़ा सही करते हैं हमसे डरते हैं। So basically every animal is actually afraid। Now tell me something, आप बुल को जानते हैं ना, एक बुल है। Are you, अगर आपकी और बुल की रेसलिंग हो जाए तो कौन जीतेगा? बुल जीत जाएगा ना, नो उसमें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा आपकी और बुल की अगर रेस करवाई जाए कौन जीतेगा? बुल जीत जाएगा ना। उस स्पेन में करते हैं, वो जब पीछे बुल को छोड़ते हैं, बंदे आगे भागते हैं, they try to run away, but every now and then somebody gets killed। वो ऊपर से, तो बुल की स्पीड बड़ी होती है। Although those young guys very fit and athletic give themselves a head start, still the bull manages to somehow catch up to some of them। और फिर वो उनको टॉस करता है और अपने हाथ बाजू तुड़वा लेते हैं। तो बुल के साथ आप रेस में भी हारेंगे, बुल के साथ आप कुश्ती में भी हार जाएंगे, लेकिन फिर भी एक 5 साल का बच्चा डंडा लेके बुल कहता है हुश हुश, और बुल लेफ्ट राइट हो जाता है, कमरे में बंद कर देता है। थाईलैंड में आप जाए, छोटा सा बच्चा हाथी पे बैठा होगा और उसको सोटियां मार रहा होगा, हाथी चल रहा होगा। हाथी को कभी ख्याल भी नहीं आया कि ये बच्चा तिनके बराबर है, मैं अपनी सूंड लेके इसको पकड़ता हूँ, जमीन पे मार के step on him and crush him, but the elephant doesn't do that because उसको पता है कि इस बच्चे का बाप भी है कहीं पे आसपास। अगर मैंने इसकी वजह से देखी मेरा जीना आराम हो जाएगा, ये मेरे और मेरे पूरे खानदान को मार देगा। So the thing is कि every animal does not want to mess with you। मैं आपको बताऊं बिल्कुल इसी तरह से जिन भी है। जिनको आप ये ना समझो कि वो कोई बड़ी बड़ी तोप चीज है, भाई उनके पास तो सुपर पावर्स हैं, बुल के पास भी सुपर पावर्स हैं, बट यू नॉट अफ्रेड ऑफ अ बुल, राइट? कि हम रात को डरते हो वो बुल ना आ जाए, मुझे बचा ले, कहीं बुल ना घर में घुसा है। We don't do that। The point is कि the bull has no power over you। Likewise, the jinns have no power over you। आप इंसान हैं, act like it, right? So you have absolutely nothing to fear। If you're a human being, on top of that, if you're a Muslim, you've got nothing to fear। एक तो आप इंसान हैं, ऊपर से आप अल्लाह के साथ connected हैं, so you've got nothing to fear। So basically, आपके दिमाग में अगर कोई भी confusion थी ना जिन से related, I want you to forget about it because they're not something to be afraid of। जिन्स want कि आप डर जाएं, ताकि उनमें पावर आ जाए। The more you're afraid, the more they get, यानी समझ लें उनको पावर ज्यादा मिल जाती है। So एक चीज आपको मैं एडवाइस करूं, the more horror movies you watch, the more jinns can play with your mind। Like है तो वो बच्चों की तरह, तो आपको नाइटमेयर ज्यादा आएंगे। और इसीलिए आप ने कहा कि अगर तुम्हें नाइटमेयर आते हैं और आप ख्वाब देखो डर जाओ, तो you should say औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम and then sleep on your right side again, because शैतान जो है वो नाइटमेयर्स की शक्ल में आपको डराता है। And that's one of the first ways that jinns try to affect you। फिर आपको डराते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं ताकि आपका वीकनेस आप में आ जाए, जब वीकनेस आप में आती है वो स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है? So they try to play with you like that। The more comfortable you are, नहीं, they cannot do anything to you। अब देखो मैं ये वर्कशॉप जो है, ये I have been delivering this workshop all over Pakistan। I mean बड़ी सी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, पब्लिक वेन्यूज पे, पीसी में, कहाँ पे कराता हूँ। लोग मुझे कहते हैं साहब आपको डर नहीं,
जिन आपको कुछ पकड़ते नहीं, आप पंगे क्यों लेते हैं? मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जिन मुझे क्या मेरी दाढ़ी का एक बाल नहीं उतार सकते। हाँ, थर्ड लाइन, So, they cannot touch you. Because मैं आपको बताता हूँ कि जब आप, first of all as a human being, second of all as a believer, I can tell you they are afraid of you. They are afraid of you. आपको पता है उमर इब्न खत्ताब, right? The companion of the Prophet. The Prophet would say, Umar, what do? You come out of your house, you go one way, the shayateen run the other way. That's how much afraid they are of you. इतना डरते हैं तुमसे. Because you know this Quran that you might have in your heart, that is very powerful. That is very powerful. It's a very big weapon, and they know that उस बंदे से mess around नहीं करना who can recite something to you. ठीक है? Especially ayat from the Quran, because that really burns them. Okay, so here is how magic takes place. Okay, so अब अगर आप जानना चाहते हैं कि मैजिक कैसे होता है, तो आज मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ मैजिक करने का. Not that I'm going to give you the recipe for it, कि आप घर जाके try कीजिएगा and tell me how it feels. But I'm going to give you the concept behind magic. ठीक है? मैजिक के पीछे concept क्या है? मैजिक के पीछे याद रखें दो concept हैं. In order for you to do magic, you have to do two primary things. Number one, आपने अपने आप को जलील करना होता है. जलील से मुराद ये, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू कहते हैं कि लक़द कर्रमना बनी आदम, we have exalted the children of Adam. आपने अपने आप को डिग्रेड करना है as a human being by doing very filthy, vile, disgusting things. Number two, you have to desecrate the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. आप ये दो काम करेंगे, you will win favors from shayateen. Shayateen will come in the form of smoke, in the form of a creature, or in the form of just whispers that you will hear, and then they will try to do a contract with you. So remember this, black magic is always a contract between a man and a jinn. And so literally you have to sell your soul to the devil. That's what you have to do. इसके आगे आप hashtag Illuminati भी लगा सकते हैं, which if we want to do this workshop we'll do it some other time. ठीक है? Because there is a whole world out there of how the even Western world में they use shayateen for their benefit. ठीक है? How they use that. But that's a totally different subject. So basically it's a contract between the man and the jinn. अब man jinn को फेवर्स करता है, jinn man को फेवर्स करता है. Man क्या फेवर्स करता है? अपने आप को जलील करता है, because ultimately जो objective था वो क्या था कि इंसान अपने आप को बेइज्जत करे, अपने आप को नोबिलिटी ना शो करे, आदम अलैहिस्सलाम को जो ऑनर मिला था वो शो ना करे, और अल्लाह के दीन की भी बेइज्जती करे. सऊदीया में देयर इज अ कमेटी कॉल्ड अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर कमेटी, यानी जो लोग दे एंजॉय द गुड एंड फॉरबिड द इविल. उस कमेटी ने एक मैजिशियन को पकड़ा, और इस्लामिकली मैजिशियन की सजा जो है वो मौत है अगर मैजिशियन पकड़ा जाए. तो दे कॉट अ मैजिशियन, एंड ये आपको जद्दा और रियाद में भी मिल जाते हैं. दे फाउंड वन, ही वाज इन हिज अपार्टमेंट, एंड व्हाट ही हैड डन वाज कि फॉर द लास्ट 30 days he had been basically relieving himself in his bathtub. यानी पिछले महीने से वो bathtub के अंदर अपने आप को रिलीव कर रहा था. नंबर 1 and number 2. ठीक है? He's blocked the जो उसका ड्रेन है उसको ब्लॉक किया. When they broke into his house and found him, they found him lying naked in that filth, reciting ayat of Quran. This is how magicians do magic. अपने आप को यानी डिग्रेड करना है और अल्लाह के दीन की बरकत, उसको परफेक्टली पता है वो क्या कर रहा है. सो यू नो मैजिशियन की सजा मौत क्यों है? बिकॉज एक बंदा जो चोरी कर रहा है वो कहता है सॉरी मुझे पता नहीं था, मैं आई एम सॉरी आई डिडंट रियलाइज यू हैव टू पे फॉर इट. यू कैन मेक अप एनी एक्सक्यूज, राइट? लेकिन मैजिशियन को जो है ना 100% पता है वो क्या कर रहा है. उसमें आप इग्नोरेंस कार्ड ब्लीड कर सकते, सॉरी आई डिडंट रियलाइज कि लाइंग इन फिल्थ एंड रिसाइटिंग कुरान इज अ बैड थिंग. यू क्लियरली वायलेटेड द दीन. You know what these people do? They take the pages of Quran and they use it like toilet paper. They take pages of Quran and they put it in the soles of their feet, and they walk around on them all day. They commit haram sexual relations, sometimes with minors, sometimes with acts of homosexuality, and then right in that state of najasa, impurity, they go and pray in the first saff without performing ghusl or wuzu. कि हम तो ऐसे ही करेंगे, करना जो करना. This is how they try defiance, ultimate defiance. कहते हैं कि अल्लाह के दीन को 100% अपोज करते हैं, एंड थ्रू दिस शायतीन जितना बड़ा कुफर करते हैं उतने बड़े शायतीन मदद करते हैं. बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज कि द मैजिशियन हैज नथिंग इन द दुनिया और द आखिरह. इवेंचुअली ही विल लूज इन दुनिया, ही विल लूज इन आखिरह. शैतान मेक्स यू प्रॉमिसेस दैट ही कैन नॉट कीप. He tells you, I'll give you power beyond belief, I'll give you this and that. You please me, you worship me, and you see what I will give you. और शैतान के वादे झूठे होते हैं, तो वो इनको दुनिया आखिरत में बर्बाद कर देता है. Here are some
examples of how a magician performs magic. I'll just show you this brief clip. This is basically pages of the Quran. अच्छा, मैं थोड़ा इस पे जो है कमेंट्री कर देता हूँ. Basically, आपको पता है ये how do they desecrate the deen of Allah subhanahu wa ta'ala? They do it by, as I said, using the Quran as toilet paper. They use to write ayat of Quran with urine. They write ayat of Quran with feces. They write, and especially with menstrual blood. And आपको पता है कि मैंने hundreds of तावीज़ खोले में, hundreds of तावीज़, और मैंने आज तक कोई खैर की चीज़ अंदर से नहीं देखी उसमें से निकलते हुए. And ये जो आपको दिखा रहे हैं, this is pieces of paper dipped in blood, जिसके ऊपर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं. अब मुझे पता है उस बंदे को पता नहीं था वो क्या काम कर रहा है. And so you see this, किस तरह से वो अल्लाह ताला के दीन की को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करते हैं. This is a Quran they found in one of the magician's houses, stuck in the toilet. And so they took this Quran out, they cleaned it with water mixed with zamzam, and then they put ether on it to break away the spell and to cleanse the book. So आप देखें कि वो कितनी मेहनत करके उसको पानी में जमजम मिला के उसके साथ वॉश कर रहे हैं. या कभी कभार रेन वाटर से भी करते हैं, because Allah subhanahu wa ta'ala says वनज़लना मिनस समाई माअन मुबारकन, we have revealed to you water which is यानी बरकत वाला पानी है. तो उसके साथ उस कुरान के एक पेज को साफ कर रहे हैं to break the spell from it, and then they're going to put ether on it. So आप सोचें कि इस हद तक लोग जाते हैं. They offer sacrifices of different animals in the name of their gods, in the name of the shayateen, and likewise many similar practices, which clearly आपको पता चलेगा कि ये acts of kufr है. इसीलिए इनकी सजा भी इतनी सख्त रखी गई है. Okay, so this is now, अभी मैं आपको कुछ तावीज़ दिखा रहा हूँ जो कि मुझे भेजे गए हैं. ये एक तावीज़ जो है आपके सामने है. इस तावीज़ पे क्या लिखा हुआ है? ये अश-शैतान, फिरौन, हामान 786, which by the way has got nothing to do with Islam. न्यूमरोलॉजी का कोई ताल्लुक इस्लाम से नहीं है. यहाँ पे फिरौन, हामान, अश-शैतान, और ये जो नाम लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, ये अल्लाह के नाम नहीं है. These are names of शयातीन, जिनको कहा जा रहा है कि ये तावीज़ अपने गले में टांग लें, गाड़ी में रख लें, फलां जगह रख लें, और आप सुभान अल्लाह शैतान की पूजा कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है. So this is one of the तावीज़ that their sister sent to me कि इस पे बताएं इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है. तो I told her कि can't you see it yourself? नाम किसका लिखा हुआ है? What's happening here? This again, इसमें लिखा हुआ है हामान, नमरूद, ठीक है, बहक सुलेमान इब्न दाऊद, और ये जो नाम है ये भी शैतान का है. और बहक सुलेमान इब्न दाऊद ये because they believe that Sayyidina Sulaiman was a magician. We don't believe that. This is Kabbalah magic. ये Jewish form of magic है जो पाकिस्तान में लोग कर रहे हैं. ये जो आपने देखोगे ना डब्बे बने होते हैं, नंबर लिखे होते हैं, ये Jewish Kabbalah magic है. You go home and you Google this Kabbalah magic amulets and you search. हमारे ताबीज़ जो है उस पे भी न्यूमरोलॉजी इस पे भी है, और sometimes even the numbers are the same. नंबर भी फर्क नहीं. उन्होंने हिब्रू में लिखे हुए हैं, हमने उर्दू में लिखे हुए हैं. उन्होंने हिब्रू में लिखे, हमने अरबी में लिखे हुए हैं, ठीक है. एंड ये जो लिखा हुआ है सुलेमान इब्न दाऊद, बेसिकली वो ये बिलीव करते हैं कि सैयदना सुलेमान was not given a miracle from Allah, rather नाउज़ु बिल्लाह he was a magician who had control of the jinn, जिस तरह ये कंट्रोल करते हैं जिन्स को. तो उन्होंने कहा वो भी magician थे. हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो ना मतलब कुरान में कहते हैं वमा कफरा सुलेमान, Suleiman did not do kufr. Now that's obvious given he's a prophet of Allah. But why did Allah subhanahu wa ta'ala go out of his way to explain कि सुलेमान ने कुफर नहीं किया? इसके बारे में स्कॉलर्स कहते हैं कि जादू करना कुफर है, and सैयदना सुलेमान is free from that कुफर. क्योंकि बाकी किसी के बारे में कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफर नहीं किया, इब्राहिम ने कुफर नहीं किया, मूसा और जो है इस्माइल ने कुफर नहीं किया, उनके बारे में जिक्र नहीं है. लेकिन सैयदना सुलेमान, बिकॉज मैजिक की जो रूट्स हैं ये कबाला मैजिक की, दे ट्रेस बैक टू द टेंपल ऑफ सोलोमन, इट गोज बैक टू सैयदना सुलेमान. और यहाँ पे भी देखें ये पाकिस्तानी तावीज़ है और उस पे इसने बाकी सुलेमान में दाऊद लिखा हुआ है, जैसा कि ये कबाला मैजिक प्रैक्टिस कर रहा है. और ये क्या लिखा हुआ है? इब्लीस. अब मुझे बताएं ये किस किस्म का तावीज़ है जो कि दिया जा रहा है. Okay, so now I'm going to show you basically the cure for it. ठीक है, तो हमने बहुत बात कर ली है regarding the problem. I want to come to the cure, and I want to start off by saying that there is immense power in the Quran. One of the most effective ways to cure someone who's going through possession is to recite Quran upon this person. तो होता पता क्या है? I've seen this from personal experience as well. जब आप किसी शख्स के ऊपर जो कि possessed है या किसके साथ कोई मसला है, कुरान पढ़ते हो, their state changes. आप उसको गाने सुनाओ, कुछ इशू नहीं होगा उसको. आप उसको कुरान सुनाओ, गाने सुनाओ, कुछ इशू नहीं होगा उसको. आप उसको कुरान सुनाओ, it's as if he goes on fire. Because शयातीन जो है ना, उनको भी ये रिमाइंडर मिलता है जब कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं.
One of the forms of magic is कि they recite the ayat of Quran backwards also. ये भी तरीका है मैजिक का। और आपको पता है पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो पूरी सूरह यासीन backwards पढ़ सकते हैं। That's a type of magic process as well. If you want to spot a magician, if anyone asks you for your mother's name in order to cure you, this guy is a magician. Watch out. या तो वो कौन आर्टिस्ट है उसको पता नहीं वो क्या कर रहा है. Unless of course it's the bank who asks you your mother's maiden name. That's okay. But other than that, अगर कोई बंदा आपकी ट्रीटमेंट के लिए कह रहा है ना कि मुझे माँ का नाम बताओ, then you watch out. Because the thing is कि अगर मैंने किसी पर रुकिया करना है ना, तो वो मुझे माँ का नाम पूछने की क्या जरूरत है? आप सबने अज़कार सिखाए हैं कि for example you put your hand on somebody's forehead and you say अस्सलाल्लाहु अलैहि रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक, या आप कहते हो अल्लाहुम्मा रब्बन नास अज़हिबिल बास वशफी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफा ला युगादिरु सक़मा, या आप कहते हो आऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहादिर। ये डिफरेंट अज़कार है। आप किसी के ऊपर सूरह फातिहा पढ़ देते हो, 4 कुल पढ़ देते हो, दिस इज आयतुल कुर्सी पढ़ते हो, आखिरी 2 आयत सूरह बकरा की पढ़ते हो। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द सुन्नह जो ऑप्शन में सिखाया हुआ है। माँ का नाम बाप का नाम क्या जो ना कहां से आ गया? यू डोंट नीड टू नो दैट। कोई अगर बंदा पूछ रहा है, वॉच आउट। ऑल्सो इफ समवन आस्क्स यू फॉर गारमेंट्स कि बेटा जो कल आपने कमीज पहनी थी वो लेके आए, या कोई बाल लेके आए, या कभी कभार कहते हैं किसी फला के मेंस्ट्रुअल ब्लड चाहिए, या किसी के नाखून मांगते हैं, ये कुछ मांगते हैं, जान लो ये तरीका इस्लाम का नहीं हो सकता। इफ somebody is asking you for these type of hocus pocus abracadabra चीजें मांग रहे हैं, जान लो ये बंदा जादूगर है। ठीक है, कभी कहते हैं काली सीरी लेके आओ, भाई काली सीरी का क्या ताल्लुक है इस्लाम के साथ? काला बकरा, काला कौवा, काला फलाना, यानी they ask you for these specific things, स्पेसिफिकली कहते हैं फलानी चीज चाहिए। हालांकि अगर आपने लेट्स सपोज अल्लाह के लिए कुछ सदका भी करना है तो उसमें स्पेसिफिकेशंस क्या है? बस कोई भी जानवर हो सकता है, चाहे वो बकरा हो, दुम्बा हो, गाय हो, बछड़ा हो, कुछ भी हो, आप कर सकते हैं। Why are you specifically saying काला बकरा? उसमें क्या इशू है? So the thing is, जब भी कोई बंदा इस तरह से स्पेसिफिक होना शुरू हो जाए, realize कि this person is a magician or at least at the very least a con artist। और वो प्रोग्राम जो आता है आई थिंक एयर वाई पे सरेआम, उसमें अक्सर वो बंदा एक्सपोज करता रहता है ना ये मैजिक फेक वालों को, कि वो बाबा जी थे, मैंने खुद देखा वो शो, किसी ने मुझे जो है रेकमेंड किया, बाबा जी के पास गया, बाबा जी जब सर पे हाथ रखते हैं किसी के अपने बंदों के, तो वो उनको लगता है कि उनके सोल में से कोई चीज हुई है। पता चला बाबा जी के साथ 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। लोग फैज हासिल कर रहे हैं। तो उसने कहा बाबा जी आपके साथ की तार जा रही है। चेक किया करते करते कमरे के पीछे गई, वहां पे पता नहीं वोल्टा की बैटरी पड़ी हुई थी। कहते हैं वोल्टा चलेगा पाकिस्तान, ऐसे ही तो चला रहे हैं पाकिस्तान को, चल रहा है पाकिस्तान ऐसे। सो द पॉइंट इज के इस तरह के जो लोग हैं कि या तो कौन आर्टिस्ट होगा या फिर वो वाकई में म्यूजिशियन होगा। Out of the many तावीज़ that I've opened up and destroyed, some of them contain filth like this, जो मैंने भी आपको दिखाया। अच्छा, कुछ होते हैं उसमें से किसी बनास्पति घी का ऐड निकल आता है, तो you realize ये बंदा कौन आर्टिस्ट था। उसने वो कहते हैं तावीज़ दे रहा हूँ, बेटा खोलना नहीं है इसको, क्योंकि खोलेंगे तो क्या निकलेगा, हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। तो वो कहते बेटा इसका सीक्रेट ये खोलना नहीं, बेटा खोलना नहीं इसको। भाई अगर अल्लाह का कलाम है तो खोलने तो क्या मसला है, बल्कि मुझे खोल के पढ़ना तो सुबह दोपहर शाम। द पॉइंट इज के तावीज के साथ इशू क्या है? तावीज के साथ इशू ये है कि अगर आप ये भी कहना कि नहीं अल्लाह का कलाम ही है, तो मैं आपको उससे बेहतर तावीज दे सकता हूं। एक यूएसबी ले लें मुझसे 16 GB की, उसमें पूरा कुरान मजीद दूंगा, हदीस की सारी किताबें होंगी, और ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा तबर्रुक के लिए इंशाल्लाह। गले में पहने, सुबह दोपहर शाम रखें गले में, 16 GB की यूएसबी लेके फिरें। हम रिलीजियस सोसाइटी के साथ मेरी डील होगी, आप क्योंकि मेरे साथ यानी आप मैं कई दफा आ चुका हूं, तो आपके लिए स्पेशल रेट लगाऊंगा, 2500 रुपए की यूएसबी मिलेगी, आप ऐशिया करें सर। दूसरों के पास कुरान की एक आयत है, आपके पास पूरा कुरान है, गले में लेके घूम रहे हैं। ये पता इसकी मिसाल कैसी है? इसकी मिसाल ऐसी ही है, आप डॉक्टर के पास जाएं, आपके डॉक्टर मुझे बुखार हो रहा है, तो डॉक्टर ऐसे करो 2 पत्ते पैंट डाल के गले में टांग लो, शिफा हो। हम लोग असल में कुरान का मकसद ही भूल गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं हुदन व शिफा व रहमा, इट इज हिदायत फ्रॉम अल्लाह, इट इज शिफा, it is mercy from Allah subhanahu wa ta'ala, shifa lima fi sudur, it is shifa for that which is within your hearts, and the Quran is meant to be recited। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान की तिलावत करो अच्छी आवाज में। अफला यतदब्बरून कुरान, क्या तुम कुरान पे गौर नहीं करते हो, या क्या तुम्हारे दिलों में ताले लगे हुए हैं? So the Quran is meant to be understood, the Quran is meant to be propagated, the Quran is meant to be acted upon। कुरान के साथ ये मजाक कि कुरान को हम गले में टांग लें और हमारी लाइफ कुरान से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। लोग आते हैं जब भाई मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मुझे को बता दें, क्या मैं पढ़ के फूंक दूं, मेरा हस्बैंड पागल हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे कुछ पढ़ के फूंक दें। एज इफ मेरे पास कोई जादू है ना कि हस्बैंड आएगा कि जिसको प्रॉब्लम है
हस्बैंड ठीक हो गया, रिकंडीशन हो गया तुम्हारा husband। ऐसे थोड़ी होता है, यानी इट्स नॉट, इट डजंट वर्क लाइक दैट। इट डिमांड्स अ लाइफस्टाइल चेंज। इफ यू वांट टू क्योर योरसेल्फ, इट डिमांड्स अ लाइफस्टाइल चेंज। ऐसे नहीं कि आपने यानी अल्लाह की नाफरमानियां कर रहे हैं और मैं कुछ पढ़ के फूंक दूं आप पे और आप बिल्कुल सेट हो जाएंगे, इस तरह से नहीं है। अक्सर माए बच्चों को लेकर आती, मेरा बच्चा इतना कमजोर क्यों है, आरडी में नमक की कमी होगी प्रॉब्लम, तो कहते नहीं कि बच्चा कमजोर है, इस पे कुछ पढ़ के फूंक दे, नाफरमानियां कर रहा है, ये लो बेटा आप ठीक हो गए, ले जाए। ऐसे नहीं, it doesn't work like that. So the Quran has to be recited and implemented. That's what it is. अच्छा, I'm going to show you right now another video, which is, I assure you it's not doctored. There is no catch to this video. ये basically एक शख्स है who is possessed, जिसको basically पता नहीं था कि वो possessed है। वो गालिबन कुवैत में तरावी पढ़ने गया। Now जो कारी साहब हैं, वो बहुत अच्छी आवाज में रेसिटेशन कर रहे हैं, और वो जो बंदा है, बिकॉज शयातीन जो है ना उनको अफेक्ट करती है अच्छी रेसिटेशन, which comes from the soul, not like मुल्ला फरारी। मुल्ला फरारी समझते हैं, जो स्पीड ऑफ लाइट पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहमान, ये इसका मुझ पे नहीं होता तो शयातीन पे कैसे होगा? We don't need मुल्ला फरारी, we need रिलैक्स, कुरान को आराम सुकून से पढ़ना, ठीक है। सो अभी आप देखेंगे वीडियो जिसमें इमाम साहब जो हैं वो कुरान पढ़ रहे हैं, और कुरान पढ़ते हुए वो रो रहे हैं। He's so into it, he's crying because they say it's not the gun, it's the man behind the gun। तो कुरान तो सारे पढ़ सकते हैं, बट किस पैशन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। And so when he starts reciting in that manner, he starts crying, the person next to him जिसको फिक्स पढ़ना शुरू होते हैं, you find उसकी क्या कैफियत होती है कि किस तरह से वो अफेक्ट होता है by the recitation of the Quran itself। Just a glimpse of what happens when you recite Quran on a person who is possessed. Now, the Qari Sahib जिस तरह से पढ़ रहे हैं, look at the way he is reciting and look at the reaction of this person. A lot of times when people get ruqya done on them, जब वो अपने पे दम करवाते हैं, कुरान पढ़वाते हैं, तो इससे भी worst case scenarios होते हैं, इससे भी worst case scenario होता है, the guy go crazy sometimes, and ऐसे होता है कि वो 3-4 बंदों से भी बंदा काबू नहीं आ रहा होता है, it's that crazy. But the thing is, this is the only way to kick or expel some of the shayateen out. If you want to get जो है ना बंदा एक्सरसाइज या उसको एक्सरसाइज करना है, तो उसके लिए हमें सिर्फ कुरान पढ़ना होता है। There's no hocus pocus abracadabra, nothing else, and anyone can do this by the way। इसके लिए हमें खास मौलवी की भी जरूरत नहीं है। तो गॉड फॉरबिड, खुदा खासा हमारी फैमिली में कोई ऐसा हो, तो आप जितनी कन्विक्शन से पढ़ेंगे उतनी कन्विक्शन से और कोई नहीं पढ़ सकता। सो यू नो, इस्लाम में वो मौलवी का कॉन्सेप्ट नहीं है कि जी बच्चा पैदा हुआ तो मौलवी आएगा अजान देने के लिए, और शादी हुई तो मौलवी निकाह पढ़ाएगा, और किसी का जनाजा मौलवी पढ़ाएगा। ये मौलवी, हमने इस्लाम को ना आउटसोर्स कर दिया हुआ है। व्हाट वी हैव डन इन फैक्ट इज कि हम खुद नहीं पढ़ते, ना हम खुद कुरान पढ़ते हैं, ना हदीस पढ़ते हैं, हमने कुरान को आउटसोर्स कर दिया कि जी मेरा तो काम ही नहीं है ये। आई विल स्टडी माय केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, दीन का पूरा आउटसोर्स करो। अब जब आउटसोर्स करेंगे तो फिर जो मौलवी कहेगा मान जाएंगे उसके बाद। द पॉइंट इज, जब आप खुद रिसाइट करना शुरू करते हैं और आप पढ़ते हैं, दैट्स व्हेन यू बिकम एनलाइटेंड एंड यू रियलाइज व्हाट इस्लाम इज एंड व्हाट इस्लाम इज नॉट। सो यहाँ पे आपको पता चल रहा है किस तरह से एक रेसिटेशन से फर्क पड़ता है। अच्छा, I'm gonna come now to the cure, ठीक है। So we have just a little bit time left and I want some time for Q&A. So basically I'm going to give you 13 steps very quickly how you can cure yourself, you or anyone from your family, or save yourself, even prevention भी इसके अंदर शामिल है। Now remember कि कुछ चीजें हैं जो कि बेसिकली आपने करनी है।
जिनके बगैर चारा नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपने लाजिमन करनी है और कुछ चीजें जो कि सुपरफिशियल है, जो कि हम कहते हैं कि एडिशनल चीज है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे को कोई इंफेक्शन है तो हम कहते हैं आपने एंटीबायोटिक तो खानी ही खानी है, लेकिन उसके बाद आप पैराडोल भी खा लें, विच इज गोइंग टू ट्रीट द सिम्टम्स। तो हम लोग आपको बता रहे हैं इस वक्त कि जो बेसिकली असल मसला है वो क्या है और फिर उसके बाद की चीजें क्या है। नंबर 1, योर अकीदा हैज टू बी साउंड, मीनिंग योर बिलीफ इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज टू बी क्लियर, मीनिंग कि आप उसके साथ शिर्क ना करते हो। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द हेल्प ऑफ अल्लाह व्हेन यू आर एसोसिएटिंग पार्टनर्स विद अल्लाह? जब आप गैर अल्लाह की कब्रों पे जाके सजदे करें, जब आप अल्लाह के अलावा लोगों से मांगे, तो आपका अकीदा शेक हुआ हुआ है, आपका अपना बिलीफ स्ट्रांग नहीं है। हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग टू गेट क्योर्ड? सो रिमेंबर कि जहां अगर अल्लाह ने कोई आपकी तरफ कोई भी एफ्लिक्शन आई है, अल्लाह उसको रिमूव कर सकता है। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज कम ऑन सॉलिड तौहीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि अल्लाह ताला के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। जिस चीज का नाम इबादत है वो सिर्फ अल्लाह के लिए, ठीक है? दैट्स द फर्स्ट स्टेप। और अगर इसमें मसला हो रहा है तो फिर क्योर भूल जाए। इसके अलावा आप जो भी सुर्खी पाउडर लगाते रहे, इट्स नॉट गोना हेल्प यू, बिकॉज बेसिकली आपका इनहेरेंट मसला पड़ा हुआ है, व्हिच इज दैट योर बिलीफ इज नॉट देयर। नंबर 2, यू हैव टू एस्टैब्लिश सलाह। हमारे कुछ टीचर्स हैं जिनके पास अगर आप चले जाएं इलाज के लिए, वो पहला सवाल ही पूछते हैं कि बेटा आप नमाज पढ़ते हैं? अगर आप कहें मैं नहीं पढ़ता, कहते बेटा फिर आप मेरे पास मत आए, क्योंकि हाउ कैन आई हेल्प यू व्हेन अल्लाह इज नॉट हेल्पिंग यू? बिकॉज जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप अल्लाह की प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। जब आप नमाज को छोड़ देते हैं, आपने खुद ही अल्लाह की प्रोटेक्शन को छोड़ दिया हुआ है। तो कहते हैं मैं कौन होता हूं, मैं किस खेत की मूली हूं कि मैं आपका इलाज करूं जब अल्लाह आपकी मदद नहीं कर रहा? तो बेटा पहले आप नमाज एस्टैब्लिश करें, फिर आप आए, फिर आपका इलाज करते हैं। सो कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमने फिक्स करना है। नंबर 1 अकीदा, नंबर 2 सलाह, नंबर 3 also inherent problem is daily azkar. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has taught us many masnoon azkar, many du'as for protection that you recite in the morning and in the evening. For example, Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. And many other du'as. ठीक है? तो बहुत सारी दुआएं, आखिरी दो आयत सूरह बकरा की, आयतुल कुर्सी, सूरह फातिहा, चार कुल, ये सारी चीजें वो हैं जो कि सिखाई हैं एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इविल फोर्सेस। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले 3 कुल पढ़ते, जो ना कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, हाथों पे ब्लो करते हैं, एंड ही वुड वाइप ओवर हिज बॉडी। ही वुड डू इट वंस, ही वुड डू इट ट्वाइस, एंड ही वुड डू इट 3 टाइम्स। ठीक है? तो ये आपका रिचुअल था हर रात को सोने से पहले। सो ये कुछ अज़कार हैं जो आपने करने हैं। A good book for this is called Hisnul Muslim, English name Fortress of a Muslim. You can get its app also. आपको इसकी ऐप भी मिल जाएगी, तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। It's called Hisnul Muslim. इंग्लिश में इसका नाम है Fortress of a Muslim. इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन उर्दू में मिल जाता है। The duas are in Arabic. You recite the duas and you then recite the translation if you like, इंशाल्लाह, ताकि आपको उसका मीनिंग भी आ जाए। So ये जो सुबह शाम के अज़कार है ना, they're basically like your clothing. यानी मेरे लिए तो ऐसे जैसे मैं अपने घर से कपड़े पहन के निकलता हूँ, इसी तरह से अज़कार करके निकलना पड़ता है। Especially since I'm जो quote unquote पंगे ले रहा हूँ जिनों के साथ, तो I cannot afford to be without my guard. I have to keep it up. Likewise, अगर आप वुज़ू की हालत में रहते हैं, the shayateen cannot touch you. The more pure you are in that state of purity, alhamdulillah, they cannot touch you. And मेरी आदत है, no matter which lecture I go to, I make sure मेरा वुज़ू हुआ। Every time I leave the house, I make sure मेरा वुज़ू हुआ। ये हो नहीं सकता कि मैं every time, rather like this, every time I use the washroom, I make वुज़ू। मतलब आई ट्राई कि मैं 24 घंटे अगर हो सके तो वुज़ू में हूं। द ओनली टाइम आई वोंट बी इज व्हेन आई एम यूजिंग द वॉशरूम एंड देन आई एम आउट अगेन वुज़ू करके। सो दिस इज व्हाई वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट दिस थिंग्स। तो जब आप वुज़ू करते हैं, एक फोर्स फील्ड बन जाती है। आपने सुबह शाम के अज़कार किए हुए, फोर्स फील्ड बन गई है। आपने सुबह नमाज पढ़ी है, फोर्स फील्ड बन गई है। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट लेयर्स। अगर एक दिन कोई इक्का दुक्का मिस भी हो गई है, तो एटलीस्ट यू हैव 2-3 बैकअप लेयर्स देयर, सो दे कैन नॉट टच यू। इसलिए मैंने कहा कि वो दाढ़ी का बाल नहीं उतार सकते। आई एम सेइंग इट फॉर रीजन, आई एम नॉट सेइंग इट जस्ट लाइक दैट। I'm saying it for a reason, and I'm telling you, they cannot touch you. They cannot touch you. When you leave your house and you say Bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah, जो आपके घर के बाहर 2 शैतान होते हैं ना, वो कहते हैं कि जी आज हमारे कंट्रोल से बाहर रहिए, आज ना तो हम इसको हाथ लगा सकते हैं, ये पूरी तौर पर अल्लाह की हिफाजत में है, सो चलो निकलो, किसी और को तंग करते हैं, वो छोड़ जाते हैं आपको। So when you recite, these are azkar जो मैं आपसे सिखा के चले गए। He has taught us these things to protect us from the world of the unseen. So we need to get into habit of reciting these morning and evening azkar. बुक का नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एक और बुक भी है अलहुदा पब्लिकेशंस की, इट्स कॉल्ड इय्याका नस्तईन। दैट इज आल्सो अवेलेबल एज एन ऐप, यू गाइस कैन डाउनलोड दैट। ठीक है? तो वो आपको मार्केट में भी मिल जाएगी, उसकी डाउनलोडेबल ऐप भी है इंशाल्लाह। ट्राई टू मेमोराइज सम ऑफ दीज हिफाजत की दुआएं, नजर बद की दुआएं, इनको तो कम से कम याद करें, ताकि आपको उठते बैठते आप ये चीजें पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह।
Number 4, recitation of the Quran in your house, or maybe in your case in your dorm room. So recitation of the Quran, in particular सूरह अल-बकरा. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिस घर में सूरह अल-बकरा पढ़ी जाती है, शयातीन उस घर से भाग जाते हैं. जिस घर में अजान की आवाज आती है, वहां से शयातीन भाग जाते हैं. So जब अजान होती है तो शैतान कान में उंगलियां दे के ना भाग जाता है वहां से. That's how much शैतान hates the अजान. And that's the time when the angels descend. जब अजान होती है तो एंजल्स उतरते हैं और शयातीन भाग जाते हैं. और इसी तरह से जब आपके घर में कुरान पढ़ जाता है, one of the things that I teach people is कि if you are having some issues of spiritual nature, then आप straight away क्या करें, घर के अंदर रोजाना सूरह अल-बकरा की तिलावत करें for the next 7 days and see how it feels. And you realize कि एकदम से वो जो एक्टिविटी थी उसमें कमी आती है, because जो evil forces थी वो वहां से भाग गई हैं, because they cannot stand it. But it's not कि आपने सीडी पे लगा के चले गए घर छोड़ के, कि सीडी पे लगा दिया, घर में लगा हुआ है, आप जो है वो जो है ना मॉल ऑफ लाहौर में घूम रहे हैं. ऐसे नहीं करेंगे, 2 नंबरी है. Somebody has to be listening to it. So even if you play it on a CD player or MP3 player, whatever, somebody has to be listening to that. ये नहीं कि वो ऑटो पे लगा हुआ है और आप आगे पीछे घूम फिर रहे हैं और ये कर, इस तरह नहीं करना. Okay, so recitation of the Quran. Number 5, doing tawbah from sins. Because I don't know anything that will cure you faster than istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala कहते हैं वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफून कसीर. Whatever of misfortune befalls you, it is because of what your hands have earned, and He Allah pardons much. So if our troubles are linked to our sins, if we seek repentance for our sins, our troubles will also disappear. So जब भी कोई मुसीबत ऐसी आई हो तो मैं कहता हूँ आप जल्दी से इस्तिग़फ़ार करें, make tawbah for the bad stuff you might have done. Inshallah, Allah will make the process of recovery very easy for you, inshallah. And sometimes it could be something very minor that you might be doing. You might think it's very minor, but it's a big deal. ठीक है? So किसी किस्म की भी बेहयाई हो, disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala हो, you stay away from that, because उससे आपका ही फायदा है. नहीं करेंगे तो मतलब ये ऐसे ही कि कहते हैं what goes around comes around. As you sow, so shall you reap. जैसा करोगे वैसा भरोगे. अगर आप अल्लाह की नाफरमानियां कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बरकतें नाजिल होंगी, then you are sadly mistaken. And I'm telling you, मेरी लाइफ में भी जब मैं अल्लाह की बहुत ज़्यादा disobedience करता था, I mean we are all sinners. I sin differently, you sin differently. The Prophet ﷺ said, every son of Adam is a sinner. The best of them are those who repent. So when I was away from the deen, मेरे लाइफ में ना 4-5 बहुत heavy किस्म के झटके लगे, बहुत heavy. It could be in the form of the loss of a loved one. It could be in the form of a heartbreak. It could be in the form of an accident. It could be in the form of some issue with possession or something like this, an illness. But the thing is कि आप या तो तौबा करके उसको भगा दें या फिर आप उसके consequences को सफ़र करें. So tawbah is one of the fastest ways. Now I'm going to mention 2 things which you will not like. Yeah? Okay, here goes. Number 1, remove pictures from your house. Pictures of animate things. याद रखिए मेरा कोई पर्सनल स्टेक इन्वॉल्व नहीं है आपके साथ. मेरी तरफ से आपकी लाइफ है, your life, your choice. You can do whatever you like. ठीक है? But I'm telling you as a person who is dealing with these things, remove pictures of animate things from your house. अपने घर वालों की तस्वीरें, you know, celebrities की तस्वीरें, because the Prophet ﷺ he said कि जिस घर में भी pictures होती हैं उस घर में angels नहीं आते. And I'm telling you, if the angels are not coming to your house or your dorm room, then some other makhluk is. So either you make your house a magnet for the angels, forces of good, or you make it a magnet for the forces of evil. Choice आपकी है. And how does that affect you? You might think कि जी मेरे घर में क्या फर्क पड़ेगा, अगर angels चले गए हैं तो घर में बेबरकती हो जाएगी, लड़ाइयाँ झगड़े ज़्यादा हो जाएंगे, problems होंगे. You won't even realize. So remove the pictures and put them in a storeroom or something. वो जो गुड्डू पप्पू बबलू की तस्वीरें लगी हैं वो सारी उतार दें. You know, गुड्डू should be in your heart. Pappu should be in your heart. Remember them in your heart. Remember them on your mobile phone if you have to. But not up on the wall. So मैं हैरान होता हूँ कि आप किसी घर जाते हैं तो साहब ने अपनी बेगम की तस्वीर ड्राइंग रूम में लगाई हुई. भाई क्यों? फिर आप कहते हैं मेरी बेगम को नजर बहुत लगती है. भाई आपने जो नजर का सामान जो ड्राइंग रूम में रखा हुआ है आपको देख रहे हैं, तो नजर ना लगे तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो जो पप्पू की तस्वीर आपने लिविंग रूम में लगाई हुई है, हर बंदा रहा होगा पप्पू देखो कितना प्यारा लगे. कितने लोग माशाल्लाह कहते हैं, कितने लोग कहते हैं अल्लाह मुबारक लाओ कि अल्लाह ताला बरकत दे इसको. And so be careful of these type of things because इसका इशू होता है. So inshallah make it a plan to remove pictures from your house. मैंने अपने घर पे जब किया था बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा था. I did it from my area. मेरा क्योंकि upstairs portion है, I cleared up the whole thing. जब मुझे पता चला ये बात है, I told my mom नीचे से, वो थोड़े से क्योंकि मैं दीन पे आया था वो अभी नहीं आए थे, तो उन्होंने कहा बेटा ये क्या तुम जुम्मा 8 दिन कोई नया इस्लाम लाए. मैंने कहा जी ये हदीस है आप जो है खुद पढ़ लें. तो उन्होंने कहा नहीं इसकी ये इंटरप्रिटेशन नहीं होगी. मैंने कहा चले आप किसी भी आलिम से पूछ लें क्या इंटरप्रिटेशन है. You know, talk to your own person, whoever you want to, find out the interpretation. तो उनको पता चल गया लेकिन फिर वो दिल नहीं मान रहा था. फाइनली खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने पेरेंट्स का बेडरूम क्लियर करवाया.
फिर मैंने लिविंग रूम क्लियर कराया, फिर मैंने स्टडी रूम क्लियर कराया, करते करते माशाल्लाह पूरा घर क्लियर हो गया. सो इट टुक अ व्हाइल बट अल्हम्दुलिल्लाह आई वांटेड कि मेरे घर के अंदर ये इशू ना हो. इसके बाद जो चीज आ रही है वो आपको और भी चुभेगी. दिस इज गोना हर्ट मी. You guessed it. You guessed it. I'm sorry to burst your bubble, but I swear to Allah, I swear by Allah कि अगर ये बात ना होती ना मैं आपसे ना कहता. देखो मुझे कोई जरूरत नहीं है आपकी लाइफ को खराब करने की या आपकी लाइफ में मुश्किलें लाने की. देखो there is a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He said, "Love for your brother what you love for yourself." I used to be a music freak. I'm telling you, I have lyrics memorized right now. I wish I could forget. There is Eminem in my head. There is Snoop Doggy Dogg in my head. There is Dr. Dre. There is Tupac. There is Biggie Smalls. There is NWA. There is 2 Live Crew. Astaghfirullah. There is even some of 50 Cent in there. Okay? I am telling you, I tried my level best to forget, but I can't. I can tell you, I can rap battle with any one of you right now. ठीक है? पर ये मेरी मजबूरी है ना, मेरी मजबूरी है कि मैं कुछ चीजें मेमोराइज कर चुका हूँ. आई विश कि मैंने इतना टाइम कुरान सीखने में लगा दिया होता जितना मैंने रैप लिरिक्स मेमोराइज करने में लगाया हुआ है. सो ऑल माय लाइफ आई वाज रियली इनटू द हिप हॉप सीन, यू नो, द R&B एंड ऑल दैट. एंड आई वाज सो बिग ऑन म्यूजिक. मेरे पास जो कलेक्शन ऑफ DVDs थी और CDs थी, इट स्ट्रेच फ्रॉम लाइक, ये जो पूरी वॉल आप देख रहे हैं ना, इतने साइज की तकरीबन मेरे कमरे की वॉल थी. एंड इस पे 4 शेल्फ्स थे, 4 शेल्फ फिल्ड विद CDs. ठीक है, दैट्स माय कलेक्शन ऑफ CDs. उसके अलावा कंप्यूटर के ऊपर पता नहीं कितने गिग्स के ऊपर डेटा पड़ा हुआ था. When I found out कि म्यूजिक के बारे में there is a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam where he says that there will come a time towards the end of times when people will make 4 things halal for themselves जो हलाल है नहीं. क्या? मर्द अपने लिए सिर्फ को हलाल कर देंगे, जिना को हलाल कर लेंगे, शराब हलाल हो जाएगी लोगों के लिए, मुख्तलिफ नामों से बाजार में आना शुरू हो जाएगी, लोग उसको पिएंगे. एंड नंबर 4, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. The Prophet sallallahu alaihi wasallam did however give the permission to play the duff, which is the tambourine without the tassels. सैयदा आयशा बजाती थी घर के अंदर ईद के मौके पे, आपने उनको नहीं मना किया. शादी ब्याह के मौके पे खवातीन अगर इकट्ठी होती हैं, they beat the duff and they sing songs, that's okay. ठीक है, खवातीन के सामने सिंग करें, मर्द अपने साथ करें, that's okay inshallah, that's not a problem. There was a war dance that took place in the mosque of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So alhamdulillah we are all for that. हमारे यहाँ एक और इशू है कि मस्जिद में आप war dance करके दिखाएं, आपकी टांगे तोड़ देंगे लोग. You know, there were people from Habasha who had spears in their hands and they were doing like a war dance type की चीज मस्जिद में कर रहे थे. And आप सल्लम सैयदा आयशा के साथ हैं, they were watching all of this. So हम तो वो काम भी नहीं करते. There were women who used to go to the mosque of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. आज हमने अपनी मसाजिद को औरतों के लिए बंद कर दिया हुआ है. ये हमारी बदकिस्मती है कि हम ऐसे करते हैं. But there are some masajid that do allow for women to come. मैं जहाँ इस्लामाबाद में तो फैसल मस्जिद is one example of that. जहाँ पे there are men and women, इजाजत है. Obviously women pray in the back, men pray in the front, but there is space for them. बच्चों को आप लेके आए, it's no problem. तो थिंग इज हम लोगों ने बहुत चीजों को अपने लिए खुद से हराम किया हुआ है. लेकिन म्यूजिक इज वन ऑफ दोस थिंग्स जिसके बारे में हम लोग बहुत रिलैक्स हैं. और आप सल्लम की हदीस सही है कि हम इसको हराम समझते नहीं. वी डोंट इवन थिंक इट्स अ प्रॉब्लम. आपको पता है मुझे अगर एक भी कोई तिनका बराबर भी कोई चीज मिल जाती ना इसके सपोर्टिंग में, आई वुड नेवर हैव गिवन अप म्यूजिक. मैं तो बहाना ढूंढा था कि मुझे कोई लूप होल मिल जाए कि मैं इसको अपने लिए जायज कर दूं. बट आई डिडंट फाइंड एनीथिंग एंड आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट. आई टेल यू, आई ट्राइड द कुरान. कोई आयत मिल जाए उसको मैं मिस इंटरप्रेट कर लूं, कोई हदीस ऐसी मिल जाए उसको नहीं इसका असल मतलब ये था. आई कुडंट फाइंड एनीथिंग. लुक एट जुनैद जमशेद. Junaid Jamshed, may Allah have mercy on him, he gave up his career in music. वो पागल तो नहीं था बंदा. He not lost his mind. He gave up a lucrative career in music. One of the oldest and top bands of Pakistan. Vital Science के साथ वो था. Then solo artist भी बन गया. He gave up all of that for what? He's not crazy. He didn't lose his mind. वो उसने दीन पढ़ा. समझ में आने की बात नहीं तो नहीं. या मेरी मर्जी या अल्लाह की मर्जी चलेगी. So the point is कि जब मुझे पता चल गया, मैंने सीडीज का पैक उठाया, मैंने कहा सारी सीडीज उतारो. आई कॉल माय सर्वेंट्स, मैंने कहा जी वो डब्बे लेके आओ जरा, कार्डबोर्ड बॉक्सेस. मैंने कहा लेट्स जस्ट डू इट क्विकली बिकॉज़ वो होता है ना बैंडेज जल्दी से उतार दो तो ठीक होता है. आई डोंट वांट द पेन टू बी टू मच. तो मैंने कहा वैसे भी मैं आपको बताऊं कि मोस्ट ऑफ द कंटेंट दैट आई हैड ऑन द वॉल आई न्यू इट. वो वैसे भी इवन विदाउट एनी म्यूजिक हार्डली कंट्रोवर्शियल है. आपका जो रैप इंडस्ट्री है, इट्स ऑल कस वर्ड्स, derogatory term for women, abusive language, drugs, alcohol, you know, वगैरह वगैरह. Heavy metal का जो collection थी hard rock की, it's very satanic. A lot of the themes are very satanic. Pop rock and you know pop music आप उठा लें, it's all about haram love. You know उसमें कोई husband wife का love थोड़ी celebrate करते हैं. haram love ही होता है, ठीक है? And which they actually celebrate. Bollywood, don't even get me started.
ए दुनिया पित्तल दी बेबी डॉल में सोने दी। What the hell is this? I mean, what is the world coming to? मतलब कोई लिरिक्स नहीं रखे मुझे तुम्हारे पास। खुदा के बंदा ये क्या हो रहा है दुनिया में? So I mean, what is this? यानी the Prophet ﷺ said, a believer keeps his tongue moist with the zikr of Allah. And यहाँ पे लोग गुनगुनाते फिर रहे दुनिया पित्तल दी दुनिया पित्तल, यानी कोई शर्म और हया होनी चाहिए इंसान के अंदर। So the point is कि जो generally content है वो वैसे ही बड़ा questionable है। On top of that पीछे you might be stuck with like 5% instrumentals. पीछे कुछ भी नहीं रह गया तो वो पीछे रह गया, या maybe you're stuck with like Heal the World, Michael Jackson or the Earth song or something, जो कि lyrically ठीक है but musical instruments are still there. तो इसका alternative है नशीद्स। Nasheeds are songs without music, और अगर music है तो वो सिर्फ डफ होता है। तो there is a basic beat in there and then the person is singing something, which is fine, which is okay inshallah. And you can Google this, you can go to YouTube, search for nasheed artists, you'll find plenty of material out there. That will work for you as a patch. जैसे nicotine patch होता है ना, cigarette से shift करना है आपने, तो nicotine patch लगाते हैं, nasheed will work like a patch for you. So I got rid of the CDs, मैंने वो डब्बे लिए, मैंने अपने वो जो थे सर्वेंट्स को कहा कि डब्बा में डालो, let's go and drop it in the bin. तो वो ट्रैश कैन में जाके फेंकने चले गए, अब फेंक के तो आ गए, मगरिब का टाइम था, तो फेंक के आगे फिर मुझे ख्याल आया कि सुबह ना वो कूड़े वाले आते हैं और बच्चे आते हैं, तो आई थॉट कि मे बी दे पिक अप द सीडीज एंड वो मार्केट में वापस बेच दें, तो जो मैंने चीजें ली हुई वो मार्केट में दोबारा आ जाएंगी। So I thought I had to get rid of them all completely. So I took like don't do this by the way, don't try this at home. I took like a gallon of gasoline, petrol का वो gallon ले गया, and I sprayed it on the trash can, and then I lit the thing on fire, and there was a huge massive flame, enough to destroy the CDs, but not enough to cause severe damage or anything like that. So basically damage होके मैंने कहा CDs वैसे भी delicate होती हैं. Then I came home and did something amazing with my computer, which I will advise you do at home. So basically you select all the music from your computer and you copy it, rather you cut it and you paste it into one folder on any of your drives. So you create a new folder, collect all, search करके सारे MP3s वगैरह जो भी डेटा है सारा उठा के उस न्यू फोल्डर में डाल दें। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उस फोल्डर को क्लिक करना है, प्रेस कंट्रोल एंड डिलीट, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, ठीक है? तो आपसे एक सवाल पूछेगा, ठीक है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फोल्डर? उसका जवाब एक ही है, यस, प्रेस यस एंड दैट्स द म्यूजिक। ब्रीथ अ साइ, अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक दिस गुड। एंड आई एम टेलिंग यू, वंस आई डिड दैट, ये नहीं हो कि मैं मर गया उसके बाद, क्या ceased to exist. You know, I was the type of person जिसका alarm clock ही मेरा stereo था. So my stereo would basically, this huge hi-fi system would wake me up with music. Bathroom में music, गाड़ी में music, workplace में music, वापस आते हुए music, all day long I was listening to something, and it conditions you. So when I left it, alhamdulillah, I started feeling more at peace. So inshallah try this. Now the reason why I'm saying this final बात कि मैं क्यों कह रहा हूँ, you know I told you that the azan is the thing that scares the shayateen and they run away from that, and the angels come. आपको पता है म्यूजिक को हमारे स्कॉलर्स क्या कहते थे? They would call it the azan of shaitan. म्यूजिक को मौसीकी तो हमने कहना शुरू किया ना, वो तो उसको बड़े बुरे नामों से जानते थे, and they would call it the azan of shaitan. So you know what happens when you're listening to music at 12 o'clock at night, wearing your headphones and you're shaking your head. Remember कि उस टाइम पे ना शयातीन अट्रैक्ट होकर आपके पास आ रहे होते हैं. And so as you're bobbing your head, there is a shaitan staring at you in your face and he too is bobbing his head. Don't you ever forget that image. ये image कभी नहीं भूलना. आज रात को खास तौर पे जब अपने डॉम में जाएंगे ना तो आपको नजर आएंगे अपने हेडफोन, like should I or should I not? Let this image forever be implanted in your brain, ठीक है? Because it will be enough to deter you. I'm telling you. अच्छा, मैं आपको साइड नोट बता रहा हूँ. Why do jinns possess? Why do jinns possess? जिन्स को possession कैसे करते हैं? आपको पता है the only way they can possess you is not कि आप normal बंदा चल रहा है possess करते हैं, ऐसे नहीं होता. जिन्स को possess करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है. And they can possess you in one of these states. You have to be in a state of trance or in a state of kind of intoxication. या तो over consumption of alcohol, या फिर overly sad. उदास इतने थे कि you know you kind of portal opens up. उदासी वैसे, या so much in love के portal opened up, so angry portal opened up, या फिर music can do that too. Music can have planned, oh this is amazing, and you're listening to it, and as you do, that's when the shayateen can enter you. So ये कब, और आप देखो कि
Allah मुझे माफ करे, I've been to different parts of the world and I've attended the party scene. You know, sometimes I've seen people partying and you realize that maybe they're not human beings. You know, when people start headbanging like crazy and they're doing certain things, कभी कभार आपको लगता है यार ये इंसान नहीं हो सकते. The way that they're behaving, it looks like shayateen. Because आप देखो कि उस महफिल में you can't assume any goodness to come down. You know, जब वो सारा हो रहा होता है, you can't assume कि कोई खैर की बात हो रही होगी. And likewise, because आप देखो कि उस महफिल में you can't assume any goodness to come down. You know, जब वो सारा हो रहा होता है, you can't assume कि कोई खैर की बात हो रही होगी. And likewise, if you ever go to the masjid, right, and there's music playing, how repulsed will you be? आप इमेजिन करें, आप मस्जिद, किसी बादशाही मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ने, आपका चलो मैं जुमा पढ़ता हूँ जाके. अब आप वहाँ जा रहे हैं, किसी अपने लम्स की मस्जिद में चले जाते हैं. आप लम्स की मस्जिद में जा रहे हैं और वहाँ पे इमाम साहब खड़े हैं और पीछे से आवाज आ रही है. How does that feel? आप तो यार what the hell, यार बंद करो यार, क्या हो रहा है? एकदम से आपको फीलिंग नहीं आती कि this thing does not belong here. This sound does not belong here. So I'm telling you कि ये जो चीज़ है ना, ये बिल्कुल ऑपोजिट है टू द जिक्र ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. तो या तो आप अल्लाह का जिक्र कर लें या फिर आप कुरान ऑफ शैतान या अज़ान ऑफ शैतान पढ़ लें. मेक योर चॉइस. सो इंशाल्लाह आई एम टेलिंग यू, आप ये पैच लगाए ना नशीद वाला, उसके बाद गो टू द कुरान. एंड आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, no matter what your taste in music might be, there is a qari out there for you. No matter what your taste in music might be, there is a qari out there for you. There are qaris who are very grunge. There are qaris who are very hard rock. उनकी आवाज़ जरा उस तरह की होती है. There are qaris who are very mellow, very soft. There are qaris who are, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, हर तरह के हैं. There is a particular qari I know, हमारे बड़े अच्छे जानने वाले हैं. He is from Scotland. And वो, when I listen to him, I remember my days of alternative rock. Like उनकी recitation is very, he's from Scotland. He accepted Islam and he went to different universities. Al-Azhar वगैरह गए, पढ़े, किरात वगैरह सीखी. उनकी recitation में एक खास चीज़ है. मैंने रिकॉर्ड भी की हुई थी. Maybe if I had it, I would have played it. But you understand कि आप अगर सर्च करेंगे आपको अपनी मर्जी का मिल जाएगा. So try to substitute that because that is the ultimate thing. That is the ultimate thing. जिसके साथ अगर आप एक दफा connect हो जाएंगे, I'm telling you nothing will taste sweeter than that. Okay, so this is the last thing that will scare you. Again, ठीक है, so relax, calm down now, breathe a sigh. Okay. So number 8 पे है other cures. अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ basic cures मैंने आपको बता दिए, ये काम जरूरी है. अब आते हैं some superficial cures. So fasting Mondays and Thursdays. This is the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Fasting the middle 3 days of the month. That's the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Fasting जब आप करते हैं तो आप spiritual high state में होते हैं. When you're in a state of spiritual high, very hard for shayateen to affect you. आप रोजे की हालत में आप ऑलरेडी अल्लाह की प्रोटेक्शन में, very difficult for shayateen to affect you. So one of the things we tell people who might be suffering from something spiritual, हम कहते हैं चलें आप रोजा रखना शुरू कर दें. Just do that for a few days and see how you feel. Okay, another thing is black seed and honey. कलवंजी के तेल जो होते हैं ना, उसके बारे में आता है हदीस में कि it has a shifa for everything except death. And honey also. honey में भी हर चीज की शिफा है. तो make it part of your diet. One of the good things you can do is कि आप सुबह के टाइम जैसे मैं करता हूँ आमतौर पे कि I have like water, warm water, and you put like a teaspoon or 2 of honey and maybe like 7 kalwanji seeds in it, and you have that. Very good for you. Overall health benefits. Like apart from the spiritual, अगर आपको कोई और भी मसले हैं, because हदीस में आता है इसमें हर चीज की शिफा है सिवाय मौत के. So no matter what your problem might be, it's generally very healthy to have these things. Unless you have sugar, of course. अगर आप डायबिटीज है तो फिर ये ना पिए, ठीक है, हनी मत लें. Otherwise अगर वो मसला नहीं है, then definitely have this every morning inshallah. When you wake up, have part of your diet should be black seed and part of your diet should be honey. किसी न किसी shape or form इसको जरूर consume करें. Then hijama, cupping therapy. People didn't know about it until Michael Phelps did it in the Olympics. देखा किसी माइकल फेल्प्स के यहाँ पे लगे हुए निशान, निकला जी वहाँ भी वो करा रहे. You don't realize this is the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He said there is shifa in the cuts of the hijama practitioner. जब आपको cuts लगाते हैं छोटे, it doesn't pain you by the way. अगर आपको scale of 1 to 10 में पूछें, 10 being excruciating pain, hijama की pain would be 1.5 to 2 maximum. तो हल्का सा मतलब फील होता है कि सक्शन हो रही है, हल्का किसी वो लगाते हैं, बस इतनी सी बात है. And you're done in like 15 minutes. तो it's not painful. बट लगता है ऐसे पता नहीं कब लगाएंगे क्या होगा, कोई ऐसी बिग डील नहीं है. बट इट इज अ डेफिनेट क्योर. यू नो, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम पोजेशन और मैजिक, दे टेल यू टू गेट कपिंग डन फ्रॉम हियर, सर के बीच में से. तो आई यूज्ड टू हैव माइग्रेन्स, सीवियर हेडेक्स, और मुझे इतने सीवियर थे कि मुझे हफ्ते में 2 दफा होते थे अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूं. महीने में मतलब आप कह लो कि 6 मरतबा होते थे, 6 से 7 मरतबा. एंड इट वाज सो बैड कि मैं सुबह उठता था विद हेडेक, a light headache, and I knew कि बस आज गया.
सुबह उठा फजर के लिए, हेडेक इज ऑलरेडी देयर, अ स्लाइट लिंगरिंग हेडेक इज देयर. अब मैंने नाश्ता किया, इट्स गेटिंग वर्स, एंड सो थ्रू आउट द डे इट गेट्स वर्स अंटिल 11 o'clock. इट इज टेरिबल पेन. बाय आफ्टरनून आई वुड बी लाइक, ओह माय गॉड, दिस इज सो बैड. मतलब पूरे सर में यहाँ ना साइडों में दर्द हो रही है. उसके बाद आई वुड, बाय आफ्टरनून आई वुड बस collapse and try to fall asleep on a couch or something like this, and then I would wake up and puke. मतलब मैं सीधा वॉशरूम भागता, I would vomit. After that, half an hour के बाद my headache is gone. So पूरा दिन मेरा सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 साढ़े 3 तक terrible pain, and this was going on for years. I'm telling you, मैं इतना मुझे मसला था. I was like, या अल्लाह, मैं तेरे दीन का ही काम कर रहा हूँ, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? Until I got hijama done a few years ago. And when I got that done, मैंने कहा कि मेरे सर का भी कर दें, just in case. I don't know, maybe somebody's trying magic on me or something, whatever it might be. Please यहाँ का भी कर दें. उन्होंने किया. I tell you, अब 3 साल हो गया तकरीबन. I haven't had a single migraine. Not even one. Not even one. इतना effective है जामा. So believe के साथ करें. और आपको पता है कुछ लोग होते हैं जो possessed होते हैं ना, हिजामा के जरिए एक्सरसाइज भी हो जाता है. Sometimes because शैतान flows in you like blood. Sometimes हिजामा करते हैं, बैड ब्लड बाहर निकलते हैं, और जो है ना जिन भी बाहर निकल आता है. एंड दिस हैपेंड क्योंकि हमारा जहाँ पे ऑफिस इस्लामाबाद में, उसके नीचे ही हम लोग 3rd फ्लोर पे हैं, वो 1st फ्लोर पे हिजामा के क्लिनिक है. तो जो डॉक्टर साहब हैं वो अक्सर नीचे बुला भी लेते हैं. या समटाइम्स मैं वहां पे हिजामा के लिए गया होता हूँ, कहते हैं जरा अंदर आइएगा, ये जो ब्रदर है इनको ना फिट्स पड़ रहे हैं. सो आई माइट गो इनसाइड. दिस हैपेंड ट्वाइस एट लीस्ट. अंदर गया हूँ, भाई पे हाथ रखा, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ना शुरू किया, ठीक हो गया. बिकॉज समटाइम्स आप जब हिजामा कराते हैं तो आपका जिन एक्टिवेट हो जाता है, बिकॉज ही नोज ही इज गोइंग नाउ. तो वो रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, तो फिर हम पढ़ते हैं, तो फिर वो ठीक हो जाता है. सो दिस इज हाउ इफेक्टिव हिजामा इज. तो मैं तो अब तो कराता हूँ बगैर किसी वजह के. सुनना पॉइंट्स होते हैं यहाँ शोल्डर्स के पीछे, वो मैं वैसे करा लेता हूँ जब कभी मूड हो करा लिया. सो हिजामा इंशाल्लाह यहाँ पे भी पता करें, लाहौर में जो भी हैं, ट्राई टू गेट इट डन इंशाल्लाह. मेल भी हैं करने वाले, फीमेल भी हैं, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो इंशाल्लाह गेट इट डन. ऑलराइट, अजवा डेट्स. द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अ सही हदीस ही सेड कि द वन हु हैज 7 अजवा डेट्स इन द मॉर्निंग will not be affected by magic or poison for that day. So एक और क्योर ये है कि अगर आपको प्रॉब्लम है किसी किस्म का स्पिरिचुअल, आप उस दिन सुबह 7 अजवा डेट्स खाएं. They are a bit more pricier than the normal dates, ठीक है, लेकिन it's worth it. आप 7 days के लिए ट्राई करें 7 अजवा डेट्स every morning. इंशाल्लाह you will not be affected by magic or poison for that day. तो अगर कोई बंदा अफेक्टेड है, हम कहते हैं आप 7 दिन के लिए खा के देख लें, आइडिया हो जाएगा कि वो वाकई स्पिरिचुअल मसला था या कोई और आपको साइकोलॉजिकल या और मसला है. तो अगर स्पिरिचुअल था तो इसके साथ वाकई में आपको फील होगा कि इट्स गेटिंग बेटर, वो मसला अब उतना नहीं रहा. अजवा डेट्स ना, अगर अजवा डेट्स ना भी हो तो नॉर्मल खजूर भी खा सकते हैं. सम स्कॉलर्स से कि अगर आपको अजवा नहीं मिल रही है तो नॉर्मल डेट्स भी खा सकते हैं, अल्लाह आलम, बाकी अल्लाह को बेहतर पता है. नंबर 12, परफॉर्म रुकिया. रुकिया इज, मुझे मैंने कहा ना किसी पे कुरान पढ़ना, तो कुरान का पढ़ना ये रुकिया इसको कहा जाता है. किसी से करवा लेना, खुद कर लेना, फैमिली जो है मेंबर से किसी से कहना कि आपने कुरान पढ़ दें. जो भी पढ़े जरा कन्विक्शन के साथ पढ़े, यू नो, रिसाइट विद अ बिट ऑफ इमोशन एंड फीलिंग एंड यू नो, उस तरह से. ऐसे ही बस तेजी से पढ़ना सही नहीं है. तो कोशिश करें कि सही तरीके से हम लोग खुद भी कर सकते हैं. अपने पे, मैं तो कभी बीमारी हो या कुछ हो, मैं अपने पे खुद रुकिया कर लेता हूँ. So I put my hand on my head or something. So the thing is कि आप खुद से भी कर सकते हैं, किसी से भी करवा सकते हैं, depending on what your situation might be. रुकिया शरिया जो है आपको YouTube पे मिल भी जाएगा, मिशारी की आवाज में, कारी मिशारी की आवाज में या अदर्स की आवाज में. वो आप सुने, उसको लर्न भी कर सकते हैं ताकि आपको कुछ उनमें से दुआएं मेमोराइज हो जाए. So reciting Quran is very effective. इंशाल्लाह ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्योर है. Last but not least, final बात वो ये है कि the ultimate thing is to make dua and to put your trust in Allah subhanahu wa ta'ala. Because remember कि अल्लाह की मर्जी की जो है तो कुछ भी नहीं हो सकता ना. एंड अगर अल्लाह ताला चाहे तो कुछ भी हो सकता है. कुन फयकून है अल्लाह के लिए. तो अल्लाह के लिए तो इट्स वेरी इजी. फॉर अस इट्स डिफिकल्ट टू इमेजिन. सो इफ यू मेक दैट सिंसियर दुआ टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि अल्लाह मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ गए, आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस इशू, या अल्लाह प्लीज रिमूव दिस डिफिकल्टी फ्रॉम मी एंड क्योर मी. तो अल्लाह ताला कैन हेल्प यू इन दैट एंड ही कैन क्योर यू. सो रिमेंबर कि द पावर ऑफ दुआ इज अनबिलीवेबल. अगर आपको पता चल जाए हाउ पावरफुल दुआ इज, you would wish कि मेरा हर सांस जो है ना वो दुआ होता. I wish I would just spend every breath of mine वो भी दुआ वाला सुबहान अल्लाह. Because आपको पता है कि दुआ कभी भी ज़ाहिर नहीं होती. जब अल्लाह से दुआ करते हैं एंड अल्लाह ताला फरमाता, यानी जो है ना आप सल्लम की हदीस आपने फरमाया दुआ हुवल इबादा. दुआ is an act of worship. So the more दुआ you make that's better for you. लोगों से आप मांगे, कुछ देर के बाद लोग तंग आ जाते हैं. होता है कि नहीं? आप लास्ट इसको पेन दे दो, कॉपी का पेपर फाड़ दो, मुझे जो ना फुट व्हीलर चाहिए, मुझे मार्केट चाहिए, अच्छा फिर पेपर दे दो. तो कुछ देर के बाद बंदा कहता है अपना सामान लाके यार क्या हो गया तुम्हें, मुझसे मांगे जाते हैं, राइट.
तो हम लोगों से मांगते हैं, लोग कुछ देर के बाद तंग आ जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्रेफर्स क्या आप अल्लाह से मांगे। आपसे ने फरमाया अगर तुम्हारा तस्मा भी टूट जाए अल्लाह से मांगो। सो अल्लाह को तो पसंद है आप जितना अल्लाह से मांगते हैं उतना अल्लाह खुश होते हैं, और बाकी अगर आप नहीं मांगते तो अल्लाह को नाराजगी होती है कि मेरा बंदा मुझसे क्यों नहीं मांगता। सो अल्लाह से खूब मांगे। दुआ के 3 ही आउटकम्स हो सकते हैं। रिमेंबर, दुआ के 3 आउटकम्स होते हैं, और ये मैं आपको एक वाक्य के साथ समझाता हूँ किस तरह 3 आउटकम होते हैं। अब पता है एक दिन मैं बैठा हुआ था आज से कई साल पहले, मे बी 5 years पहले, एंड आई वाज मेकिंग दुआ कि या अल्लाह मुझे कैडिलैक एस्केलेड नसीब फरमा। You guys know what Cadillac Escalade is? Alright, those of you know, it's an SUV, it's a very big size SUV. तो मैंने कहा या अल्लाह मुझे Cadillac Escalade नसीब फरमा। या अल्लाह, अच्छा मैं घर में नवाफिल पढ़ के I just prayed and then I was reciting this dua. तो या अल्लाह मुझे जो है Cadillac Escalade नसीब फरमा, या अल्लाह ब्लैक एक्सटीरियर नसीब फरमा, या अल्लाह ऑल लेदर इंटीरियर नसीब फरमा, या अल्लाह 22 इंच के एलॉय रिम नसीब फरमा, या अल्लाह डॉल्बी डिजिटल सराउंड साउंड नसीब फरमा, या अल्लाह तेरे खजानों में तो कोई कमी नहीं आएगी, या अल्लाह मैं तेरा गरीब बंदा, मुझे कैडिलैक एस्केलेड दे दे, उससे क्या जाएगा तेरा। तो मैं दुआ मांग रहा हूँ। अच्छा, आई डिडंट रियलाइज माय वाइफ वाज स्टैंडिंग बिहाइंड मी लाइक दिस। ये अजीब मौलवी है, दुनिया को कहता है दुनिया को छोड़ दो, दुनिया को छोड़ो, अल्लाह की तरफ भागो, और यहाँ बैठा कैडिलैक एस्केलेड नसीब फरमा, लेदर इंटीरियर नसीब फरमा, डॉल्बी डिजिटल सराउंड साउंड, ये क्या हो रहा है। तो मैंने जब कहा या अल्लाह तू अरहमर राहिमीन है, या अल्लाह तू जुल जलाली वल इकराम है, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा। अच्छा, मुझे लगा मेरे पीछे कुछ साया सा है ना मेरी वाइफ, तो मैंने आमीन या रब्बल आलमीन। तो मेरी वाइफ ने कहा ये क्या था, जैसे मैंने सलाम किया उन्होंने कहा ये क्या कर रहे थे आप। मैंने कहा काम डाउन, रिलैक्स सिट डाउन, मैं आपको समझाता हूं। उन्होंने कहा बताएं क्या ये क्या, दूसरों को तो आप कहते रहते हैं कि ये है वो है प्लान रखा है कि दुनिया में कुछ नहीं रखा, आओ जन्नत की तरफ दौड़ रहे, और आप अल्लाह ताला से ये सारा कुछ मांग रहे हैं। मैंने कहा लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आई विल एक्सप्लेन। वो बैठे हुए जी बताइए। मैंने कहा देखो आप सल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि जब दुआ होती है उसके 3 आउटकम्स होते हैं। या तो ये होता है कि दुआ नहीं मिलती, आपने जो मांगा था वो नहीं मिलता, और उसके बदले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके ऊपर कोई आने वाली आफत को टाल देते हैं, आने वाली कोई कैलामिटी जो है वो डिफर हो जाती है। सो यू डोंट रियलाइज कि आपने दुआ मांगी, दुआ तो कबूल नहीं हुई, लेकिन मे बी यू आर अबाउट टू गेट टू एन एक्सीडेंट, और अल्लाह ने वो रिमूव करा दिया। फॉर एग्जांपल यू आर आस्किंग फॉर लाइक द ब्रांड न्यू होंडा सिविक, ठीक है, आपको अल्लाह ने नहीं दी। अल्लाह न्यू कि अगर आप ये मांगते आप इसी के एक्सीडेंट में मर जाते। So Allah didn't give it to you because Allah knew that there is a calamity just looming right out there. So He didn't give you. जिस तरह एक बच्चा जो है वो माँ बाप से कहे कि मुझे हीटर में हाथ लगाने दें, अब माँ बाप कहते नहीं लगाओ नहीं लगाओ नहीं लगाओ। क्यों नहीं कह रहे उसको लगाने के लिए? क्योंकि वो करेगा अपना नुकसान करेगा। अगर माँ बाप कहे सजाओ लाके लगाओ, वो हाथ लगा के आप बर्न हो जाएगा, फिर आपने क्यों लगाने दिया हाथ, प्रॉब्लम है। सो द थिंग इज कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी दुआ तो उस टाइम पे कबूल नहीं करते, लेकिन उसके बदले में कोई प्रॉब्लम डाल देते हैं। That's a good thing. So I told my wife it's a good thing अगर कोई प्रॉब्लम डाल जाए। दूसरी बात ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको दुनिया में तो नहीं देते, लेकिन इसके बदले आपको आखिरत में जरूर मिलेगा। और हदीस में आता है कि एक शख्स जो क़यामत के दिन जाएगा जिसको अल्लाह ताला खजाने देंगे, तो वो कहेगा कि अल्लाह मेरे तो सारे अमाल खत्म हो चुके हैं, फिर ये एडिशनल खजाने क्यों मिल रहे हैं, और वो भी अनबिलीवेबल खजाने। तो अल्लाह ताला कहेगा ये वो दुआएं हैं जो तुम्हारी दुनिया में कबूल नहीं हुई थी। तो वो कहेगा काश मेरी कोई दुआ कबूल ना होती, काश मेरी, कि मैं दुनिया में क्या मांगता रहा, मेरी काश कोई दुआ कबूल ना होती, सारी मेरी जन्नत के लिए रख दी जाती। तो मैंने कहा अगर मेरी अल्लाह ताला दुआ कबूल नहीं करता और मुझे अल्लाह जन्नत में दे देता है तो दैट्स आल्सो गुड थिंग, राइट, इट्स अमेजिंग। और मैंने कहा आखिरी बात यह कि अल्लाह ताला दुआ सुन भी लेता है कभी। तो मैंने कहा अगर दुआ कबूल हो गई तो मैंने कहा फिर पता क्या होगा, यू विल हैव अ वेरी कूल मौलवी राइडिंग इन स्काई। इमेजिन लम्स के दरार में ये हो गया, that's it. 22 inch rims coming, parking, यहाँ पे आपके ब्लॉक के बाहर गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। Imagine Cadillac Escalade से उतर रहे हैं, टायर चेक रहे हैं। So the thing is if I get that, imagine what it will be. So अब तो मैं कहता हूँ या अल्लाह मुझे हेलीकॉप्टर नसीब फरमा, या अल्लाह मुझे प्राइवेट जेट नसीब फरमा, या अल्लाह मुझे याद नसीब फरमा, और मांगो अल्लाह ताला से जो मांग सकते। अल्लाह के पास खजानों में कमी नहीं, हमारी सोच में कमी है। वो किसी ने पूछा ना एक बंदे से, तो वो बंदा था वो किसी के घर काम करता था, तो उसने कहा कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? कहता है मेरी ख्वाहिश है, ही किसी का बावर्ची था, कहता है कि मेरी ख्वाहिश है कि बड़ा सा घर हो, उसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, स्विमिंग पूल हो, बंगला हो, नौकर हो, चाकर हो, और मैं वहां पे ड्राइवर की नौकरी करूं। यानी जितनी आपकी सोच है उतना आप सोचेंगे ना। आप क्यों लिमिट कर रहे हैं? आपने ड्राइवर की नौकरी करनी है, आप कहें अल्लाह मुझे मालिक बना उस घर का। अगर बन गए तो क्या होगा, इमेजिन, अगर नहीं बने तो कोई मसला नहीं, अगर बन गए तो क्या होगा। सो अल्लाह के लिए मांगे जाते हैं, आप मांगे। सो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आया हुआ है, कोई भी डिफिकल्टी है, वेदर स्पिरिचुअल और अदरवाइज, यू आस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला विद फुल कन्विक्शन। एंड यू नो व्हाट, मैं आपको एडवाइस ही करता हूं
कि गेट रियल विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, गेट रियल। एक होता है हम लोग ना आदि हो जाते हैं दुआएं मांगने के, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, रब्बी जअलनी मुक़ीम अस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना तक़ब्बल दुआ। वी गेट इनटू द हैबिट ऑफ इट। बट एक होता है कि हैव अ कन्वर्सेशन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यानी रात को सोने से पहले ना, व्हेन यू लाइंग डाउन इन योर बेड, वुजू है नहीं है डजंट मैटर, जानवाज बिछी हुई है नहीं बिछी हुई डजंट मैटर, आप बेड में लेट रहे हैं, आपने या अल्लाह आई एम अ पर्सन हुज मेड मिस्टेक्स, या अल्लाह मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, आई मे नॉट बी परफेक्ट, आई मे कमिट सिंस इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग, लेकिन या अल्लाह तू बहुत माफ करने वाला है, तू गफूर भी है, गफार भी है, तू रहमान भी है, रहीम भी है, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। या अल्लाह आई वांट टू बिकम अ गुड पर्सन, आई वांट टू चेंज माई सेल्फ, द सिचुएशन अराउंड मी इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू चेंज, बट या अल्लाह आई वांट टू कम टू यू। या अल्लाह आपने खुद कहा कि जो आपकी तरफ एक कदम लेके आता है आप उसकी तरफ 10 लेके आते हैं। या अल्लाह मैं आज फैसला कर रहा हूं कि मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं। या अल्लाह यू मेक दिस पाथ इजी फॉर मी। या अल्लाह इट्स नॉट इजी फॉर मी टू लिव इन दिस वर्ल्ड विद द सिचुएशन दैट आई एम गिवन, बिकॉज़ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इवन सेड कि एक जमाना ऐसा आएगा जब दीन पे चलना ऐसा होगा जैसे कोयलों को हाथ में लेना, लाइक बर्निंग एम्बर्स को हाथ में पकड़ना उतना मुश्किल होगा। तो या अल्लाह मेरे लिए डिफिकल्ट है, बट आई वांट टू डू समथिंग। सो यू मेक दैट दुआ टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड से या अल्लाह मेक दिस पाथ इजी फॉर मी, मेरे लिए दीन पे चलना आसान कर दे। एंड आई आस्क यू फॉर गुडनेस इन बोथ वर्ल्ड्स। जो अल्टीमेट सक्सेस है वो ये है ना कि दुनिया में भी खैर मिल जाए, आखिर में मिल जाए। तो जो भी मेरे प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मेरी परेशानियां हैं, जो भी मेरी मुसीबतें, सबको दूर कर दे यार, एंड गिव मी अ गुड लाइफ, जो तू प्रॉमिस करता है कि तू बिलीवर्स को देगा, कि जो भी ईमान लाएगा वो वमन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन, जो भी अमल सालिह करेगा, मर्द हो या औरत हो, ईमान रखते हैं उसको हयात में तजर्बा देते हैं, विल गिव देम अ ब्यूटीफुल लाइफ। सो आई वांट अ ब्यूटीफुल लाइफ इन दुनिया एंड आई वांट एन इवन ब्यूटीफुल लाइफ इन आखिरत। सो यू मेक दैट टॉक टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, रियली हैव अ टॉक टू हिम, यू नो, गेट आउट ऑफ दैट रटी रटाई दुआएं जो आपको पता भी नहीं क्या बोल रहे हैं। तो अल्लाह ताला से हाथ टू हाथ करें। आई एम टेलिंग यू इट विल चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। और मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं। You might have heard of the bucket challenge? Yeah? Okay. I'm going to give you people of Lams a new challenge. It's called the Quran challenge. Okay? And that challenge is as follows. The challenge is, you have to promise me you have to do it. You have to do it once in this semester at least. बल्कि इस semester छोड़ना इस हफ्ते में करना है। ज़्यादा बेहतर है वरना आप भूल जाएंगे। तो जो है कुरान चैलेंज ये है कि आपने रात के तीसरे हिस्से में उठना है। You have to wake up in the last third of the night, which is the time before Fajr Salah. जब फजर की अज़ानें नहीं होती उससे पहले आप उठेंगे, because that's the time when Allah Subhanahu wa Ta'ala descends to the lowest heaven and He says, "Is this someone who wants something from me? Who I can give?" कोई मुझसे मग़फ़िरत मांगना चाहता है जिसको मैं दे दूं, कोई मुझसे कुछ चाहता है जिसको मैं उसको अजर अता फरमाऊं। हमारे स्कॉलर्स कहते थे कि ये तहज्जुद की मांगी हुई दुआ जो है ना, ये वो होती है which never misses its target. So I want you to wake up at that tahajjud time before Fajr Salah. फजर से कोई आधा घंटा पहले, 40 मिनट पहले उठ जाए, वुजू करें, जायनमाज़ बिछाएं, उसको बैठ जाए, खामोशी होगी, कोई भी सब सो रहे होंगे उस टाइम पे, आप कंप्लीटली अकेले होंगे। आई वांट यू टू ओपन अप द कुरान ट्रांसलेशन वाला, वेदर इट्स इन उर्दू और इंग्लिश डजंट मैटर, बट आई चैलेंज यू कि आप उसका एक पेज पढ़ें। फॉर एग्जांपल एक पेज है वन साइड एंड उसकी बैक साइड, ठीक है, तो फ्रंट एंड बैक एक पेज पढ़ें, जहां से मर्जी आपको मिल जाए, तो फ्रंट और बैक पढ़ें इसका, ठीक है। फर्स्ट रीड द अरबिक and then read the translation आराम सुकून के साथ and focus on the meaning. The challenge is in that state when you are alone with Allah Subhanahu wa Ta'ala, reading His book, reading His kalam in the Arabic language with understanding. The challenge is for you not to cry. Challenge ये है कि रात के उस तीसरे हिस्से में while you are reciting the Quran, रोना नहीं है आप, रोगे तो out, because that's the challenge. I'm telling you, this is a time when Allah Subhanahu wa Ta'ala is closest to you. Everybody else is asleep. The whole world is sleeping. It's just you and Allah. And उस मकाम पे आप जो अल्लाह से कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। आप अल्लाह का कलाम पढ़ें और आपके दिल में ना उतरे, ये impossible. It is impossible. That's why I'm saying the challenge is not to cry. So you do that challenge and let me know how it feels. And then you'll realize what you've been missing in your life. आपको तब समझ में आएगी कि वो क्या ईमान की मिठास थी जो मैं all my life I've been searching for. I didn't even know it was right there. It was right under my nose, yet I never knew it. लेकिन आपको पता है ये दुनिया में confuse कर देती है. You know, we get so involved in दुनिया, we forget about it. We forget about everything else. दुनिया ठीक है. I'm not saying that you shun the world and leave everything. I'm saying अपनी आप degrees करें, complete करें, find everything. But remember, you have to go back to Allah Subhanahu wa Ta'ala. So we say, turn to Allah before you return to Allah. And I will conclude, inshallah, with a quote from अशफाक अहमद साहब। अशफाक अहमद साहब ने बड़ी प्यारी बात, उन्होंने कहा कि अल्लाह को प्यारे होने से पहले ही अल्लाह को प्यारे हो जाओ।
थिंक अबाउट इट, बड़ी डीप बात है कि अल्लाह को प्यार होने से पहले, यानी अपने मरने से पहले ही अल्लाह को प्यार है, असल कामयाबी इस चीज में। सो मेक दिस इंटेंशन कि मैं अल्लाह को प्यार होना चाहता हूँ, आई वांट कि अल्लाह मुझे पसंद करे, और इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततahhiरीन, अल्लाह मोहब्बत करता है उस गुनाहगार से जो तौबा करे। सो मे बी हम लोग मुत्तकीन नहीं है, हम मुहसिनीन नहीं है, हम सालिहीन नहीं है, हम उस तरह के इतने नहीं है, लेकिन हम तौबा तो कर सकते हैं, ये तुम्हारी कैपेसिटी है। हम गुनाहगार तो सारे नहीं, तो अगर आप तौबा भी कर लेते हैं कि अल्लाह आई एम सॉरी, मैं गलती हुई, आई एम सॉरी एंड आई डोंट वांट टू लिव दैट लाइफ अगेन, देन इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल लव यू फॉर दैट। एंड व्हेन अल्लाह लव्स यू, आई एम टेलिंग यू देयर इज नथिंग एल्स इन द वर्ल्ड बेटर देन दैट। जब अल्लाह से प्यार करता है ना, फिर एवरीथिंग गोज अराउंड, रिवॉल्व्स अराउंड यू एंड एवरीथिंग हैपेंस अकॉर्डिंग टू यू। आप मानोगे आप ऐसी ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होंगी, दे विल ब्लो योर माइंड। ऐसी ऐसी वाकयात आपकी लाइफ में होंगे, फिर आप हैरान हो जाओगे, मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है मेरी जिंदगी में। अल्लाह खुद बहुत आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। अल्लाह ताला की बातें कुरान में बेशुमार। आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, बट इंशाल्लाह एंड आई विल मेंशन फाइनली वन थिंग, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह यहाँ पे आए एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जब भी मैं माशाल्लाह आता हूँ, वेरी वार्म वेलकम एंड माशाल्लाह लॉट ऑफ यू कम अप एंड टर्न अप टू द इवेंट्स। आई जस्ट वांट टू लीव यू विद दिस थिंग। आपको पता है कि जब आप किसी भी गैदरिंग, बिकॉज़ वी स्टार्टेड विद द वर्ल्ड ऑफ द अनसीन, आई वांट टू एंड विद द वर्ल्ड ऑफ द अनसीन। आपको पता है कि जब भी आप किसी गैदरिंग में इस तरह बैठते हैं जहाँ पे अल्लाह को याद किया जा रहा है, तो अल्लाह के फरिश्ते भी ना उस गैदरिंग में उतर आते हैं, दे कम डाउन इनटू दैट गैदरिंग एंड देन दे सराउंड दैट प्लेस, एंड जहाँ उनको जगह मिलती है वो वहाँ बैठ जाते हैं। सो व्हेरेवर दे फाइंड अ स्पेस दे सिट डाउन, तो दैट चेयर इज एम्प्टी, वहाँ बैठ गए, पीछे कहीं बैठ गए, व्हेरेवर, सो दे सिट डाउन इन दैट प्लेस एंड दे आर शॉक्ड, बिकॉज़ आपको पता है कि दे क्वेश्चन ना, वो देखते हैं कि आप अल्लाह के बंदे, आपके पास फ्री विल है और आप विलिंगली अल्लाह की बात सुनने के लिए आए, अल्लाह की दीन की बात सुनने के लिए आए। सो वो हैरान होते हैं कि इन्होंने क्वेश्चन किया ना अल्लाह ताला को कि अल्लाह तू ऐसी मखलूक पैदा कर रहा है जो तेरी नाफरमानियां करेंगे, तो फिर हम तेरी इबादत के लिए काफी नहीं। तो अल्लाह ताला कहता मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। तो जब वो देखते हैं आपको यहाँ बैठे हुए कि यू कुड हैव बीन डूइंग एनीथिंग राइट नाउ, यस और नो, अभी आप कुछ भी कर सकते थे, आप कुछ रिटर्न नहीं आता है, यू कुड बी वॉकिंग अराउंड ऑन कैंपस, यू कुड बी सिटिंग इन द कैफेटेरिया, यू कुड बी गॉन होम, व्हाटएवर, यू कुड हैव बीन डूइंग एनीथिंग राइट नाउ, येट यू चोज टू कम हियर। तो वो हैरान होते हैं कि अल्लाह तेरे बंदे विलिंगली यहाँ पे आए होते हैं तेरी बात सुनने के लिए। तो अगर पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि वो क्या कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, तो कहते हैं अल्लाह वो जैसे ना जन्नत की आग से बना मांग रहे थे। तो अल्लाह पूछते हैं क्या आपने जन्नत देखी हुई? तो कहते हैं जन्नत नहीं देखी। तो अल्लाह कहते हैं कि अगर देखें तो क्या होगा? तो कहते हैं फिर तो वो सुबह शाम बना मांगेंगे अगर वो हल्का को देख लें। फिर अल्लाह कहते हैं वो क्या कह रहे थे? कहते हैं वो तो जन्नत मांग रहे थे तुझसे। तो अल्लाह कहते हैं आपने जन्नत देखी हुई? तो कहते हैं नहीं अल्लाह जन्नत नहीं देखी। तो अल्लाह कहते हैं जन्नत देखें तो क्या होगा? तो कहते हैं अगर वो जन्नत देख लें तो वो तो विश करेंगे कि उनका हर सांस जो है वो जन्नत को ही तलब, अल्लाहुम्मा अस्सलुका जन्नह, अल्लाहुम्मा अस्सलुका जन्नह, या अल्लाह मैं जन्नत दे दे, या जन्नत, अगर वो देख लें। फिर तो कहते हैं और क्या कह रहे थे? तो कहते हैं कि अल्लाह तो तेरी बढ़ाई बयान कर रहे थे कि अल्लाह इतना, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरी तारीफें कर रहे थे। तो अल्लाह कहते हैं कि क्या उन्होंने मुझे जो है देखा? कहते सीन। तो दी एंजल से नो, अल्लाह कहते हैं अगर देख लें तो क्या होगा? Allah Jamilun wa yuhibbul jamal. Allah is beautiful and He loves beauty. So अल्लाह कहते हैं मुझे देख ले तो क्या होगा? तो मुझे कहते हैं अल्लाह जब आपको देख लेना फिर तो वो बस अपनी पूरी जिंदगी बस तेरी तारीफ करते हैं। अगर वो तुझे देख लें, आपको पता है the biggest gift that people will get in paradise is that they will be able to see Allah subhanahu wa ta'ala. Some people will see Allah every Friday and some fortunate ones will get to see Allah twice a day. Once in the morning and once in the evening. And there would be nothing more amazing for the believers than to see the one who made them. There would be nothing more amazing than to see the one. आपने इतनी बातें सुनी अल्लाह के बारे में, अल्लाह रहमान है, रहीम है, गफूर है, गफार है, जुल जलाल वल इकराम है, इतने ज्यादा बातें अल्लाह के बारे में सुनी। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद। Imagine you see, you finally get to meet the one who made you. Who made you the way you are, who designed your eyes, your nose, your mouth, everything. He designed you. You get to meet him. And imagine करें जिसने आपको पैदा किया वो खुद कितना खूबसूरत है। So अल्लाह कहते हैं एंजल्स को, एंजल्स गवाह है ना कि मैंने इन सारों को माफ कर दिया। जो भी लोग उस गैदरिंग में बैठे हुए थे, सब खड़े हुए थे, सबको मैंने माफ कर दिया। तो एंजल्स कहते हैं यार वन क्वेश्चन। एंजल्स पूछते हैं सवाल कभी, वरना इनोसेंटली पूछते हैं। यादा उस गैदरिंग में कुछ ऐसे भी लोग थे जो जबरदस्ती आए थे, वो टॉक अटेंड करने नहीं आते,
उनको कोई खींच के ले आता, या कुछ लोग थे जिनको उनके टीचर ने प्रेशर डाला था तुमने अटेंड करनी, या किसी दोस्त ने उसको थ्रेटन किया था कि तुम आया तो मैं तुम्हें क्लास कर दूंगा। तो उनके बारे में क्या करना है? जो कि खुद अटेंड करने आते हैं तो जबरन भी लेके आए, अल्लाह कहते हैं मेरे दोस्तों दोबारा ना मैंने उनको भी बख्श दिया, मैंने सबको माफ कर दिया। Can you imagine what an amazing thing it is to be in this company? How Allah Subhanahu forgives you. So, my dear brothers and sisters, the point is कि हम लोगों से गलतियां होती हैं, हम सबको चाहिए कि we should come back to Allah Subhanahu wa ta'ala while we still have the chance. And अगर आप ये काम करेंगे तो Allah Subhanahu wa ta'ala will make your problems disappear and He will become sufficient for you. Allah Subhanahu wa ta'ala says in the Quran, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Whosoever puts his trust in Allah, then Allah becomes sufficient for him. तो अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपके लिए काफी हो जाए, then ask for it. So finally, मेरा आपसे कुछ पर्सनल तो नहीं है. There is no personal thing that I have from you. There is no benefit that I can give you, nor that there is any benefit that you can give me. ठीक है? So आपकी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी लाइफ है. So I live my life. मैं भी और I'm सुबह से मैं यहाँ पे हूँ, and I'm going back right now. Like right after this, I'm actually going back to Islamabad. Subah it's a new day in Islamabad, and there's plenty of stuff to do tomorrow. So the thing is, I'm here and I'm going to go now, but you'll be here. So I don't know when I'll see you again. I hope I do. I hope I see you again. But in case either Allah gives me a short life when I don't see you, or maybe I come back and you're not here. Maybe after graduate or something like that. So inshallah, I want you to make this commitment to yourself, because I've got no strings attached to you. Okay, I've told you a bit of my story, but I don't know your story. I wish I knew your story as well. लेकिन the point is कि अगर आप लोग अपनी जो है ना आज बातें की हैं उनको अप्लाई करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको होगा. नीदर एम आई डूइंग फंडरेजिंग ओवर हियर, ना ही मैं यहाँ पे इलेक्शन ला रहा हूँ कि जगह साल आपने गाड़ी को मोहर लगाना है इंशाल्लाह. ठीक है, आई एम नॉट कैंपेनिंग फॉर एनीथिंग. यू नो इट्स योर लाइफ, आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है. आपने अपनी कब्र में जाना है, जेल की देर मैंने अपनी कब्र में जाना है. तो मेक श्योर यू मेक द राइट चॉइसेस, बिकॉज द बेस्ट थिंग फॉर मी वुड बी कि अल्लाह मुझे जन्नत दे और मैं जब जन्नत में जाऊँ तो आप सारे वहां पे मौजूद हो. जितने लोग भी यहाँ बैठे थे तो आए चले गए, जो भी लोग थे, यू नो, एंड जो भी बाहर भी थे, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ. जो आना चाहते हैं जा नहीं आ सकते, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ. जो बेचारे आए थे डिडंट फाइंड स्पेस, आई डोंट नो दिस इज गोइंग लाइव टू अनदर रूम और समथिंग, इफ इट इज आई मीन गॉड फॉर ऑल दोस पीपल whosoever attended or was part of it or organized it or managed it, attended और जब बेचारा बाहर नहीं करता था जिसको मेरी बात आ रही है, आई मीन गॉड फॉर एवरी सिंगल वन ऑफ यू कि अगर हम सबको जन्नत से दोस्त में मिलना नसीब फरमाए, बिकॉज दैट्स व्हेयर द रियल पार्टी है. दुनिया में आप जो भी कर रहे हैं असल पार्टी तो वहां पे, यहाँ पे क्या पार्टी खत्म हो जाएगी कुछ सबसे. यहाँ पे तो यू नो कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, एवरीवन हैज टू डाई. असल सेलिब्रेशन वहां पे. तो आई रियली विश आई कैन सेलिब्रेट विद ऑल ऑफ यू इन जन्नत. दैट्स वेरी ऑल. तो चलो माय गॉड फॉर ऑल ऑफ यू, और अगर हम सब की मुश्किलों को परेशानियों को दूर करें, जो भी लोग हमें से